मेरी गलती थी कि आई डिड नॉट रीड रेडिट बिफोर गोइंग टू मोरक्को बिकॉज आई गॉट कॉन्ड एवरीवेयर उस मुल्क में. एक हरे पासपोर्ट के साथ मैं बैठा हुआ हूँ, हाँ. सही है. और अब जो ऐसे कौन से मुल्क हैं जहाँ मैं बस जा सकता हूँ मुंह उठा के? पीछे से बंदा आया है मोपेड पे, मेरा फ़ोन छीन के भाग गया. मेरा फ़ोन कराची में कभी नहीं छीना है. हैव एन ऑनेस्ट कन्वर्सेशन विद योरसेल्फ कि व्हाई आर यू टेकिंग दिस ट्रिप. यार ट्रैवल एक्सेसिबल मैं भी कर बिल्कुल सकता हूँ. accessible, हाँ बिल्कुल कि accessible. अगर मुझे सही है पैसे चाहिए ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए. You need to know how to pack simply. You need to know किधर आप अपना फ़ोन खोल सकते हो, किधर आप वैल्यूबल फ्लैश कर सकते हो, कौन सा होटल बुक कर सकते हो. This might be a bit sketchy. Why is it so cheap? You need to have these radars in your head. In terms of your content, and I feel like if I were to like label Mr. Paki, label Bilal as something, I would be like travel. Yeah. सबसे पहली चीज. And is that something that's deliberate for you? Not deliberate, but it's happened over the years. I've always मुझे ट्रैवल करने का शौक हमेशा से था. Okay. बट एक चीज़ जो मैं हमेशा देखता था कि कोई ऐसा बंदा नहीं था जो हरे पासपोर्ट पे was taking risks. वही, yeah. And I know Pakistanis like traveling. मुझे पता है, like उनको locally adventure करने का बहुत शौक है. बिल्कुल. And मगर unfortunately पासपोर्ट की वजह से इंटरनेशनल में वो महदूद रह जाते हैं till दुबई, थाईलैंड, इस्तांबुल. They're great places, no doubt. Yeah. मगर I think I was like चलो यार मैं गिनी पिग बन जाता हूँ. Like दिखाऊंगा कि it's possible. So that's how it basically started. But then, what was about travel that was so exciting for you? Yeah, the thing is, I have to actually go back to my grandfather. My grandfather was an archaeologist, and he actually also like discovered a few archaeological sites in Balochistan. Ek Mehergarh archaeological site, which he was also one of the people who co-founded it. Long story short, he used to बचपन में पूरी उनकी कहानियाँ सुनता था. वो अफगानिस्तान गए थे, ईरान गए थे, बामियान के बुद्धाज उन्होंने देखे थे उस वक्त and everything. So I grew up hearing these stories. और मेरे लिए ये था ना कि यार मैं बड़ा होऊंगा ना, मुझे ये करना है, मुझे घूमना है, मुझे दुनिया देखनी है. So this was just a thing that happened. पेज के साथ साथ ये हुआ कि मैंने शुरू में एक दो मुल्क देखने शुरू किया. And when I started putting that on the page, and I started realizing that there was a market for this, and then people were like, wait, we've never seen anyone take these risks. And then I was like, okay, now I get the motivation to take bigger and bigger risks, and I've taken quite a lot of risks. नहीं वो तो I follow you. I've been following you for a while, and I think I've personally seen the travel thing increase. Yeah. पहले was food culture, lots of different things, but the travel thing I saw increase not too long ago actually, over the past 2 years. Yes, I think like Post 2 years. COVID, हाँ. Post COVID and everything. Yeah. I think post specifically after I left my day job. So that's So what made you leave your day job, man? Like the content's life? That's what it is? Yeah, like I think the content was alhamdulillah taking off, and I genuinely, this was my dream. My dream is to see the world, and I don't like hum log, when we look on the social media and everything, we see like a lot of people from obviously powerful passport countries go like, oh, I've seen the world and everything, but I was like, I've never seen a Pakistani do it. Yeah, so I have never seen a Pakistani do it. At least I haven't even seen a Pakistani go to like a lot of countries. Like I would say I've only been to 34 countries, and 34 like in Pakistani terms, when I say it, people are like, oh my god, that is a lot. That is a lot. Countries, yeah. But if I'm like in a hostel somewhere in like Europe or in like Southeast Asia, it's like 34 is sad. तो वो तो passport privilege वो हो गया ना, passport वही. privilege है ना and everything. So I was like नहीं यार, and I so happy कई दफ़ा now when I put it out, तो लोगों से फिर मुझे मैसेज आता है, oh हमने भी ट्राई किया था, हमने भी ये मुल्क देख कर आ गए. Like I went to Nicaragua this year and everything, and उसकी कोई पॉलिसी नहीं थी, बस पहुंच गया था. So a girl, like 2-3 girls actually messaged me and everything. They're like, oh yeah, we also got in, और हमें बताया था उन्होंने कि हाँ एक और पाकिस्तानी भी आया था. मैंने कहा मैं ही था, ठीक है. So yeah, that's how it is. No, that's excellent. So let's start with that, right? So अगर हम एक हरे पासपोर्ट के साथ में बैठा हुआ हूँ, सही है, और अब जो ऐसे कौन से मुल्क हैं जहाँ मैं बस जा सकता हूँ मुंह उठा के? It is tricky, ठीक है, tricky मगर है, like ऐसा. पहली तो बात है, Maldives is right here. It's on arrival, ठीक है. Perfect. बट एक चीज़ जो मुझे स्पेसिफाई करनी है लोगों को, because कई लोग हमारे होते हैं वो मुंह उठा के लिटरली चले जाते हैं. हाँ, ऑन अराइवल है, बट आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि हैव अ होटल बुकिंग
Okay. have a return flight to show that you'll go back home, then inshallah that shouldn't be an issue. So the Maldives के बिल्कुल बराबर में श्रीलंका भी है, ठीक है, एंड वहाँ पे भी आप जा सकते ठीक हैं, है, हाँ। ऑन अराइवल नहीं है, बट इट्स एन ई वीज़ा, सो लाइक वो आप कुछ घंटों के अंदर आपका एक वीज़ा आ जाता है। लाइक आपको जाने से पहले वो लेना होता है। हाँ, मगर बट उसके अंदर इन द सेंस वो ई वीज़ा की जो रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं, वापस पासपोर्ट की तस्वीर भेजनी है, आई थिंक इट्स $30 और समथिंग, 3-4 घंटे बट इट बाद। हैज टू बी डन बिफोर यू, It has to be done beforehand. But Maldives is like just book your ticket, hotel, पहुंच जाओ. Okay, fine. There's a lot of countries in East Africa जिसके अंदर है, अब जो मैंने अभी तक नहीं करी है, जिसके अंदर कीनिया है, युगांडा है, रवांडा है. अच्छा, we don't need a visa for Rwanda? On arrival, ठीक है? Okay. On arrival. I haven't done it yet because there's my ट्रैवल मात्रा जो भी बताऊंगा इज अ लॉट कि कई दफ़ा मैं मल्टीपल कंट्रीज भी कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ इलाके में जा रहा हूँ, ठीक है, सो आई हैवंट गॉटन टू ईस्ट अफ्रीका बिकॉज आई गेट ओवरवेल्म्ड। मैंने कहा वहाँ बहुत कुछ है, सफारी है एंड एवरीथिंग, आई ऑल्सो लाइक बिग सिटी लाइफ, सो आई वाज लाइक अगर मैं जाऊँगा देन आई लाइक टू डू मल्टीपल, या एटलीस्ट 2 कंट्रीज तो करूँ। वहाँ 5 मुल्क हैं जहाँ हमारा वीज़ा सिचुएशन इज प्रीटी ईजी, तो केनिया, रवांडा, बुरुंडी है, साउथ सुडान भी आई थिंक इज ईजियर एंड एवरीथिंग। तंजानिया का आपको पहले चाहिए, ठीक है? अच्छा, उसका पहले से लेना होता है। उसका पहले से वो थोड़ा है लाइक, अब एक ज़माने में आसान होता था, मगर ये हमारी भी आदत है, हमारे भाइयों की जाके बैठ जाते हैं, ठीक है? हाँ, वो भी है, सही बात है। Another country which is on arrival and I have not gone there is Madagascar actually. Madagascar is on arrival? On arrival. I have not done it yet, but it's on arrival, ठीक है? So I'll get there. But what about any part? So ये तो अफ्रीका हो गया आपका, आपका करीब श्रीलंका वगैरह हो गया। कैरिबियन है, कैरिबियन में बहुत सारी है, बट उसका कैरिबियन का जो चीज़ है तो ऑन अराइवल, ठीक है, मगर उस फ्लाइट लेने के लिए आपको ट्रांजिट अमेरिका, कनाडा, यूके में करना होगा। और अमेरिका में ट्रांजिट के लिए आपको वीज़ा चाहिए होता है या वैसे ही कर सकते हैं? अमेरिका के लिए चाहिए होता है, ठीक है। ओके, फाइन। बट इन मुल्क पहुंचने में वो यू डोंट नीड दैट अमेरिकन, हाँ, यू डोंट नीड द अमेरिकन वीज़ा, राइट? सो लाइक कल को अगर यहाँ से फ्लाइट उन मुल्क शुरू हो जाए वाया कतर, दुबई एंड एवरीथिंग, यू कैन गो देयर। सो आई वेंट टू ट्रिनिडाड टोबैगो, बारबाडोस इज ऑन अराइवल, डोमिनिका इज ऑन अराइवल, हेटी इज ऑन अराइवल, देयर इज अ लॉट ऑफ छोटे-छोटे लाइक सेंट विंसेंट है, एंटीगा है, निकरागुआ, बट दैट्स ऑन विद यू है वो, हम विल गेट। अच्छा, हाँ, सो अब लेट्स गेट टू वो। अब इसमें जो है देयर सम कंट्रीज दैट लेट यू गेट इन इफ यू हैव अ यूएस वीजा, यूके वीजा, शेंजन, 3 ही होते हैं, उसके अलावा कोई नहीं होता। ये 3 बड़े वाले हैं। ओके। कनाडा कभी कभार, ठीक है, बट ये 3 बिग वन है। इनमें से जो सबसे जो तगड़ा वाला वीज़ा है इज़ द यूएस, और उसके बेसिस के ऊपर बहुत सारे मुल्क खुल जाते हैं। सो इफ वी लाइक डिवाइडेड, लाइक लेट्स डिवाइडेड लाइक रीजन वाइज, तो अगर आप लैटिन अमेरिका के अंदर हो तो कोस्टा रिका, पैनामा मैंने ट्राई किया हुआ है, ठीक है, एंड इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग वीज़ा। तो निकरागुआ की कोई ऑफिशियल पॉलिसी नहीं थी, बट आई वाज इन कोस्टा रिका एंड माय एकदम से मैंने कहीं से सुना था एक हवाई में दैट एक लड़का ने कर लिया था पाकिस्तान से एंड यूएस वीज़ा के बेसिस पे, बट देयर इज नो ऑफिशियल पॉलिसी एनीवेयर ऑन द वेबसाइट। सो आई जस्ट लिटरली जस्ट गॉट टू द बॉर्डर, और मेरा एक लोकल गाइड था और हमने कहा देखते हैं क्या होता है वहाँ जाके, because the thing is America has a huge influence in all of these countries, of course, yeah, a huge influence. So I was like it is a तगड़ा वीज़ा। तो मैं पहुंचा वहाँ बॉर्डर पे, उसने पूछा सबसे पहला सवाल, उसने कहा आपका अमेरिकन वीज़ा लगा? मैंने कहा लगा हुआ है। मैं कहा कि पाकिस्तान पे, पहले एकदम से उसको वही वैसे फ्रीक आउट होता है। फिर वो लेके गया पीछे कमरे में, 1 घंटा बस बैठा रहा मैंने कहा कुछ पता नहीं क्या है। फिर आया, उसने कहा अच्छा एक काम करो, तुम्हें 2 फीसें भरनी होगी, एक तुम्हें $50 तुम्हें देने पड़ेंगे वीज़ा के, और कोई 10-20 कुछ डॉलर थे, एक टूरिस्ट फीस है। क्या वापस चले गया, मैंने कहा पता नहीं क्या हो रहा है। 1.5 घंटा हो गया, 1.5 घंटे बाद आई गॉट द वीज़ा स्टैम्प्ड, ठीक है। सो निकरागुआ ऑल्सो जस्ट शो अप एट द बॉर्डर एंड फिगर इट आउट फ्रॉम देयर, ठीक है। सो ये वहाँ उस इलाके में। अच्छा, अब एक और जो चीज़ आती है जो एक हमारी फॉरेन पॉलिसी, बिकॉज आई वांट टू टेक द मोमेंट टू टॉक अबाउट दिस, इसके कुछ मुल्क हैं लाइक इंडिया, और जो इंडिया, चाइना, फिलीपींस हैं, वो जा सकते हैं यूएस वीजा पे टू प्लेसेस लाइक अर्जेंटीना, पेरू, कोलंबिया। The whole world opens up. Or if you have an Indian passport and a US visa. वो ताइवान भी जा सकते हैं, वो फिलीपींस भी जा सकते हैं, हम नहीं जा सकते। ये इंडिया वाले तो आयरलैंड, वो यूके की वीजा के ऊपर आयरलैंड भी जा सकते हैं। सो पॉइंट बीइंग, आई थिंक लाइक अगर कोई सुन रहा है फॉरेन पॉलिसी डिपार्टमेंट में एवरीथिंग, गाइस डू योर वर्क मैन, ठीक है। It's a lot of this is reciprocal as well, It's right? reciprocal, but still like we need to do that we too, need yeah. to
Mexico was another big one. I went to Mexico. तो ये Yeah. हमने सेंट्रल अमेरिका ये वाला स्ट्रिप हो गई है. कैरेबियन में बहुत सारे मुल्क हैं, छोटे छोटे एंटीगा, सेंट विंसेंट, वो सारे हो गए. अच्छा, अब आते हैं मज़ेदार वाले मुल्क जो एक हैं ये नॉर्थ अफ्रीका के अंदर. मोरक्को मैंने कर लिया था US वीज़ा. Yeah. अच्छा, Morocco you can go on a US visa. It's visa on arrival. You will be eligible for an e-visa if you अच्छा, have a, again. Okay, so fine. but वो एक दिन में 2 दिन में मिल जाता है. Egypt on arrival $25 US visa, वो literally हाँ. no questions asked. फिर Balkans है, all of them are on arrival. Balkans has what all? Albania, Montenegro, Bosnia, Serbia and एक और था North Macedonia. Okay, ठीक है, fine. मैंने 5 कर लिए थे. Easiest border crossings of my life. They did not care. Like, wow. In the sense, बस अमेरिकन वीजा उन्होंने काफी दफा देखा था, कि वाली सर, बात है, सही है, ऐसे लाइट वाइट में उन्होंने कहा सही है, लाइक जाओ ठीक है. वो वाले जो मुल्क थे, मैंने तो कई लाइक बेसिकली लाइक मैं आई फ्लू इनटू बॉस्निया, वेंट बाय लैंड टू मॉन्टेनेग्रो, वापस बॉस्निया वापस आए, सो डबल एंट्री मारी. सर्बिया भी यही किया था, सर्बिया गया था, मैसेडोनिया वापस सर्बिया, चिल सीन है ठीक है. अल्बानिया का ये है कि अल्बानिया is on arrival US visa, but you have to use the US visa. Okay. अच्छा, ये कुछ एक ट्रिक है. तो इजिप्ट एंड अल्बानिया 2 मुल्क हैं, यूज द वीजा. क्या आप अमेरिका जा चुके हो उस वीजा? जा चुके हो. हाँ. अब अच्छा, अमेरिका कभी कभार स्टैम्प करते हैं, कभी कभार नहीं करते हैं, कुछ शहरों का चक्कर है. सो हैव प्रूफ ऑफ दैट. तो एक गूगल पे एक वेबसाइट है, जस्ट लुक, आई थिंक I-48 होता है. उसके ऊपर अपना एक वो प्रूफ स्क्रीनशॉट निकालो, ताकि उनको दिखा देना मैंने यहाँ एंट्री मारी है, मेरा वीजा यूज्ड है. Okay, that's an interesting thing. Yes. We'll put the website link down here as well. Yeah. That is very and that is very easy. उसके अंदर आई थिंक आप अपना पासपोर्ट नंबर डालते हो या अपना वीज़ा नंबर डालते हो. सो ये मुझे किसी ने बोला होता, लाइक बिलाल तुम जब अल्बानिया जाओ और इजिप्ट जाओ, प्लीज़ हैव प्रूफ कि यू वेंट देयर. सो मैंने जो अपनी एंट्री थी, मैंने लॉस एंजलिस से करी थी, एंड लॉस एंजलिस में दे डोंट स्टैम्प पासपोर्ट. सो आई हैड नो प्रूफ दैट आई यूज द वीज़ा. सो मैंने एक्चुअली स्क्रीनशॉट उनको दिखाया था, और वो पूछते हैं, कहते हैं यूज्ड है कि नहीं है. सो दिस इज़ अनदर एक मज़ेदार एरिया. अच्छा, एक और जो काफ़ी लोगों को पता नहीं है इज़ ये कतर, बहरीन. यू कैन गो ऑन वो. You can go to Qatar on a US visa if you have a Pakistani passport. Yeah, but Qatar is also easy as it is. Qatar is all of these places are easy and then they're not, right? जैसे अभी दुबई का हुआ. Caveats Yeah, like exactly. caveats. Like Qatar का सीन ये है, ऑन अराइवल वीज़ा है. मैंने वो भी करा है, ऑन अराइवल है, मगर आपको 2 दिन की होटल की बुकिंग करनी होगी डिस्कवर कतर एक वेबसाइट से. ठीक है. वो सारे उन्होंने साउथ एशियन कंट्रीज के लिए रखा हुआ है. इतने बुरे होटल भी नहीं थे, तो मैंने 2 दिन के लिए ठहरा था. Turkey is another big one, जो e-visa, if you have the US visa. US visa. So what about this side of the world? Georgia, the eastern side? Georgia is, yeah. ईस्ट में अभी तक कोई नहीं है. ईस्ट में बताऊं जो है वो सारे हैं, वो फिलीपींस, चाइना, इंडिया वालों की. जैसे ताइवान इज ऑन अराइवल है, फिलीपींस इज ऑन अराइवल. अगर एंड दीज आर बिग कंट्रीज, आई वुड लव टू गो देयर, बट या नो दैट्स द वो मैंने बट आई हैव यूटिलाइज्ड माय यूएस से. मैंने जहाँ जितने मुल्क जा सकता था मैंने उस पे. Like we will put up a PDF and stuff for everyone to be able to access the list of those countries. But देखो, अब understanding what our passport prohibits us from doing, पूरा इस कॉन्वर्सेशन का आइडिया ये है कि कोई भी इसको देख के ये समझ सके कि यार ट्रैवल एक्सेसिबल है, मैं भी कर सकता हूँ. हाँ, कि अगर मुझे सही है, पैसे चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए. सो हाउ डू यू, सबसे पहले यू हैड अ ट्रिप फिलोसफी कि अगर मैं इधर जा रहा हूँ तो शायद मैं ये 4-5 भी कर लूँ. व्हाट्स योर ट्रिप फिलोसफी जनरली लाइक? व्हाट, हाउ डू यू प्लान इट? टू बी ऑनेस्ट, आई हैव नो ट्रिप फिलोसफी. आई विंग इट. आई एब्सोल्युटली विंग इट. माय फिलोसफी इज कि यार बस मुझे दुनिया देखनी है, ठीक है. एंड कभी कभार एंड द थिंग इज, sometimes I am in the mood for a very extensive trip, and it depends on country to country. Some countries do require that extensive attention, such as Afghanistan. Like I went to Afghanistan this year. I went. You think that required extensive attention? Every city is so different. So like I went to Kabul. I went to Bamiyan, saw the Bamiyan Buddhas. Went to Herat. Went to Kandahar. And extensive in the sense ke Afghanistan में the distances are long, so you need time to get between them. हाँ, और कोई railway and Afghanistan also surprisingly is expensive. तो like एक अफगानी जो करेंसी है इज इक्वल टू 4 पाकिस्तानी रुपए. तो जो आप अगर 1000 अफगानी होंगे आपको 4000 पाकिस्तानी रुपए मिलेंगे. एंड इट वाज एक्सपेंसिव. लाइक मैं गिन रहा था सारी चीज़ें, एंड उनकी प्राइसेस की जो कन्वर्जन है फॉर थिंग्स लाइक होटल एंड एवरीथिंग, वो डॉलर है, लाइक वो डॉलर लेवल है. सो इट्स वेरी मच लाइक
सो आपको जो है ना लाइक अगर आपको फ्लाइट लेनी है एक शहर से दूसरे शहर के बीच में एंड यूर अ बजट ट्रैवलर, वो $250 की आपको डज लगेगी रिटर्न. सो इट्स लाइक इट्स अ लॉट. सो of course, so you will, yeah, like under that, so you will prefer to go by land then. So I went by land, and land drives are long, like Kabul to Kandahar is like a 12 घंटे, फिर Kandahar to Herat is another 12 घंटे. मैंने एक ही फ़्लाइट ली थी बीच में, वो बिकॉज़ मैंने हेरात टू काबुल ली थी, एंड वो भी मुझे अच्छी खासी एक 25 या $150 पड़ी थी, और मुझे अपनी भी फ़्लाइट देनी थी और मेरे गाइड की भी देनी थी, तो मुझे 300 पड़े, ठीक है. सो दैट्स हाउ लाइक Iraq I went also earlier this year. That was an extensive trip. Like you require attention. I feel like if you do Turkey properly. हाँ वो पर देखो that's what my question is, right? So if I want to plan a trip, अब मैं टर्की जा रहा हूँ for example, do I think about Turkey properly or do I think about Istanbul? And you need to ask yourself what I want, ठीक है. So I'll tell you like अभी exactly like last weekend, like surprise content अभी तक मैंने लगाया नहीं है. So last weekend I was doing this collaboration with this airline, ठीक है, एक budget airline है टर्की की and everything. और मुझे जो है उन्होंने कहा था कि आपको जाना है किसी तरह से दिखाने के वो बजट वाला ट्रिप आप टर्की का कर सकते हो, और टर्की आप पाकिस्तान से कर सकते हो ऑन अ वेरी शॉर्ट वीकेंड. ये मेरे लिए भी नई चीज़ थी, बिकॉज़ आई नेवर डन दिस, ठीक है. सो सीन ये होती है, वो फ्लाइट जो है निकलती है पाकिस्तान से, कराची से स्पेसिफिकली, सैटरडे को सुबह 4 बजे निकलेगी, आप इस्तांबुल में पहुंच जाओगे 8:30 बजे सैटरडे को, ठीक है. और उन्होंने कहा तुम्हारे पास पूरा सैटरडे है और संडे को रात को 8 बजे वापसी, ठीक है. Okay. So it's basically like a weekend in Istanbul. And to be honest, this was my second time in Istanbul. I had no plans. And my plan was just to chill. And so kabhi kabar in some trip, it was like vibes. So vibes mein ye tha, I went to like the Sultan Ahmed area, thodi mosque ko, andar dekhi, theek hai. Had a nice lunch, had the famous cheesecake, which was overrated, theek hai. Had a nice breakfast the next day, had time for a nice dinner also, and took the flight back. So it depends on your mood. The first time I went to Istanbul, मैं 3 दिन गया था, मैंने like लिस्ट बनाई हुई थी, मैं ये देखूंगा. So I think एक और जो मेरा चीज़ ये होती है to travelers is that have an honest conversation with yourself कि why are you taking this trip? Okay. Are you taking this trip कि अच्छा चलो यार मुझे जाके I want to learn, I want to see sights. Yeah, are you taking this trip? I want to relax. Or are you what is your interest? ये भी बात है. And I've learned with time कि मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या नहीं पसंद है. But also different times, different places yes, bring out a different traveler in you, right? Of course. So like abhi, like in a few weeks I'll be going to New York to visit my sister. So my interest over here is I've never seen New York in the winters, in the winter, in the Christmas time and everything. And apparently it's a bucket list item. Yeah. So my sister just moved this year, so I was like, let's do it right now, ठीक है. So yeah, like हर टाइम का डिफरेंट होता है. एंड मैं न्यूयॉर्क पहले दफा समर में गया था, तो समर में बस मुझे चलना था. हाँ. तो इट्स वेदर इज डिफरेंट, टाइम डिफरेंट, आपका मूड भी डिफरेंट. ठीक है. But say if someone, okay, so in terms of people who want to plan, or say how did you end up recognizing yourself? Oh, कि यार मुझे क्या पसंद है? It took a while. Like basically कुछ था ना. Sorry. जब मैं मैंने शुरू किया था तो I was very much देखी ट्रिप एडवाइजर की लिस्ट देखी, टॉप 10 चीज़ें लाइक लिख ली मैंने कहा हाँ सब देखूंगा जाके. एंड विद टाइम आई रियलाइज्ड आई डोंट लाइक म्यूजियम्स. I realized I just get bored over there. Like मैं इस्तांबुल जब पहली दफा गया था, I went to Topkapi. I was like, I am bored out of my brains here. ठीक है, I'm sorry if some people will like it and everything. It's a museum and museum के अंदर उस चीज़ें पर हैं and everything. हाँ, there are some really big and really holy and बड़े artifacts and everything. But कुछ लोग को again no hate to some people को वो बहुत exciting लगता है. For me it's like बताओ, I'm the type of person I realized with time कि मुझे पसंद क्या था. मुझे पसंद था मुझे खाना खाने का. Like I love. ठीक है. So like I need to explore that. दूसरी बात है, मुझे I like to get under the skin of the city. तो मैं हमेशा ढूंढूंगा public space कहाँ है वहाँ शहर का कोई बड़ा, बस वहाँ जाके बैठ जाओ एक snack लेके and just observe like them going by. तीसरा is like I like architecture. I love like really good architecture. So I will go hunt for stuff like that. Another thing is like I enjoy going to वहाँ की local markets के अंदर. मुझे बड़ा शौक है जाने का, because वहाँ आपको local life नजर आएगी. ठीक है. Look for book stores. तो ये आपको समझ आता है आपको पसंद क्या है. मैंने जब शुरू में म्यूजियम्स करता था, मैं तो बोर हो गया था. मैंने कहा ये अब जैसे मेरी बहन जो है न्यूयॉर्क में अभी है, तो वो कह रही है कि यार मैं तुम्हें लेके जाऊंगी गुगनहाइम, मोमा, हम जाएंगे स्मिथसोनियन जाएंगे, एंड आई एम श्योर देयर ग्रेट म्यूजियम्स, बट आई एम लाइक I don't know if I like it or not. I think I might get bored. So one thing I learned about museums, etc., because I like a lot of that stuff, right? is कि अगर मैं अपने आप को
ये तय कर लूँ कि जी मैंने पूरा म्यूजियम देखना है, आई गेट बोर्ड एज वेल. जस्ट पिक आउट द थिंग्स दैट आर जस्ट फैंटास्टिक अबाउट दैट म्यूजियम. आपने भले टिकट पूरा दिया, जरूरी नहीं है कि आपका टाइम भी आप पूरा लगाएं, राइट? बिकॉज आई थिंक ये भी एग्जैक्टली तुमने यू हिट द नेल ऑन द हेड. कभी कभार जब आप शुरू में थे ना एज अ ट्रैवलर, जो मिस्टेक अगर मैं कहूँगा ये था, अगर मैं म्यूजियम जाता था मैंने कहा मुझे पूरा देखना है, मैंने वैसे दिया, ठीक है, बट आई थिंक यू हैव टू सी कि मेरा इंटरेस्ट क्या है इस जगह के अंदर. तो कुछ कुछ म्यूजियम्स हैव बीन इंटरेस्टिंग. जैसे कतर में देयर इज अ म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट्स. उसका द आर्किटेक्चर इज ब्यूटीफुल एंड उसके अंदर कई चीज़ें हैं विच आर वेरी इंटरेस्टिंग. अगर आप जाएं लंदन के अंदर जाएं द ब्रिटिश नेशनल म्यूजियम, जिसमें सारा चोरी का सामान हमारा पड़ा, बट ब्रिटिश नेशनल म्यूजियम में, या VNA जो है, उसके अंदर there's some stuff which is very interesting from like a South Asian perspective. So like point being, जैसे वही मैं कह रहा हूँ, कभी कभार आपका इंटरेस्ट होगा, हाँ मुझे म्यूजियम नहीं पसंद है एंड एवरीथिंग, बट डोंट कंप्लीटली राइट दैट ऑफ बिकॉज़ यू माइट फाइंड समथिंग व्हिच इज इंटरेस्टिंग. You should, so you before planning your travel, do you like scan through yes. इसमें है क्या भाई? मैं like यार अगर कभी कभार कुछ शहर होते हैं वहाँ म्यूजियम ही टॉप चीज होती है. like वो नंबर 1 होगी, या वो 1 2 3 सारे म्यूजियम होंगे. like if you look up London and everything, London में all of सब फ्री भी हैं, and they're all free, ठीक है. so you're like कुछ तो होगा यार. even the British National Gallery was very interesting and they're all the portrait gallery, the portrait gallery, yeah, that's also very nice. So and like London में, I was in London for an entire month. I was there on an exchange and this was like right around the Olympics. So it was like the best time to visit the city. तो मैंने इत्मीनान से एक्चुअली मैंने म्यूजियम्स ही देखे, सारी लिस्ट पे थे, एंड आई डोंट रिग्रेट इट एक्चुअली. बड़ा मज़ा आया था मुझे. सो या पॉइंट बीइंग, लाइक मैं स्कैन करता हूँ, देखता हूँ क्या है. अच्छा मैंने देख लिया म्यूजियम है, था अच्छा म्यूजियम में इंटरेस्टिंग क्या है, मेरे इंटरेस्ट का क्या है. सो लाइक विद मी इट्स लाइक आई लाइक टू आइडेंटिफाई विद समथिंग. So if there's anything South Asian, anything हमारे regions and everything, so I'll go look into that. So yeah, that's how I look into it. So no, that's very interesting and there's a lot to unpack there. Yeah, we're going to do a whole thing about food shortly. But before that, so when you plan कि जी मैं, या कोई भी, when you say if I came to you कि जी Bilal, you're my travel agent now, आप मेरे लिए ट्रिप प्लान करें, बताएं मुझे क्या करना चाहिए. So how would you help me plan a trip for myself? I will ask you सबसे पहले आपका इंटरेस्ट क्या है. What is your interest? आपको शौक किस चीज़ का है? And you know हर बंदे का डिफरेंट शौक है. Like I'll even tell you an example. Like my parents like traveling also. मगर मुझे एग्जैक्टली पता है मेरे पेरेंट्स का इंटरेस्ट क्या है. लाइक मेरी माँ को जो है ना शॉपिंग का शौक है, ठीक है. सो मैं बाकायदा ढूंढूंगा कौन कौन से, और मैं हर चीज़ अब लाइक हाई एंड मिडिल लो, और मैं उनको बता दूंगा ये है. मगर मुझे ये भी पता है मेरी माँ को चलने का शौक नहीं है. शी डज नॉट वांट टू वॉक. सो देन आई विल ऑल्सो फाइंड हर, मेक हर अ रूट हाउ यू कैन डू दिस. माई डैड ऑन द अदर हैंड इज अ वेरी एक्टिव पर्सन. तो उनको जो है ना, उनको देयर कंप्लीट ऑपोजिट्स. तो उनको जो है चलने वाला, मैं उनको एक्टिविटी दूंगा. तो जैसे मेरे अब्बा को जो है ना, अगर वो जैसे लॉस एंजलिस ये वाली जगह अगर गए, तो मैं उनसे कहूँगा जाएं ग्रिफिथ पार्क की हाइक करें. लाइक ही विल एंजॉय दैट. माय मॉम विल हेट इट. मैं उनको रोडियो ड्राइव भेजूंगा, मैं कहूँगा आप वहाँ जाएं, ठीक है. सो यू हैव टू आस्क द पर्सन व्हाट देयर इंटरेस्ट इज. बोथ ऑफ देम आर वेरी फिनिकी अबाउट ईटिंग. दे विल नॉट eat any like local वो वाला thing. They're very much के हम पाकिस्तानी रेस्टोरेंट ढूंढेंगे वहाँ, ठीक है, उस शहर में जाके. सो यू हैव टू आस्क द पर्सन व्हाट इंटरेस्ट देम. एंड पॉइंट बीइंग like we are a very big population, we're also very opinionated people, so you have to ask Pakistanis. Let's say I like तुमने मुझे मेक्सिको सिटी का पूरा दिया था पूरा and everything, and that was perfect because I feel like we met very much in the middle के हमारे इंटरेस्ट का कहाँ थे. So if you have the trip for say 7 days, 8 days, how are you planning it? How do you plan? Okay. Number one is, so you are a travel blogger, like you make content around, so there's an element of work there. So you're like यार भाई मैं तो 7 दिन नहीं लगा सकता, 7 ही दिन है तो मैं एक चीज और भी कर लेता हूँ. How do you plan, say for example if you weren't, or there was a time when you weren't doing this professionally, etc. So what would you do differently? अच्छा मैं एक बात बताऊँ, I very seldom post live while I'm traveling, because I'm very conscious of the fact कि मैं, हाँ है ये वर्क, ये थोड़ा एक element of the travel blogging है, but आज तक मुझे भी ये जगह enjoy करनी है. I don't want to get lost in the कि मैं upload ये वाला. So मैं क्या करता हूँ, I actually make very lazy content while I'm traveling, and मैं thoughts बाद में करता हूँ marinate. कई दफ़ा you might not even see content from my trips जो मैंने शायद लगाए भी ना हो, ठीक है, वो जनवरी में किया होगा, बट कभी एक दिन मूड चलेगा. So point being is कि I mean, how I plan trips out, it's very different. It depends country to country. And it depends on how much time I have. मैं एक बात बताऊँ, like मेरे लिए a very long trip is like 5 days. Oh, really? I think that is a very long
trip. Like मैं तो कुछ I will don't, because I'm also a very efficient traveler, so I will do things very, I'll know what I want. मुझे पता होगा ये क्या है, हाँ ये क्या है, and I'll एंड go. यू हैव नो फोमो कि यार ये मिस हो गया, कोई बड़ा मसला नहीं No, है. zero FOMO, सही है, zero. ठीक I है, have absolutely zero FOMO. सही है. I'm more about the vibes. मेरे vibes है. I need to have a good time over there. And good time आपको पहले 10 मिनट ही मिल जाएगा, ठीक है, पहुंच के, ठीक है. You just get to the beach, फौरन के फौरन, ठीक है, या पहुंचते पहुंचते आपको पहाड़ नजर आ जाएगा. Like, so that's how it is. अच्छा, so when you're planning a trip to say a place, are you thinking city or are you thinking country? कि यार क्योंकि मैं शुरू में सोच रहा था, अच्छा यार ओ स्पेन हो गया, मैं सिर्फ बार्सिलोना गया हूँ, स्पेन नहीं हुआ. Like you know what I mean? Like I was checking off boxes that I weren't really like I fully. mean, I will still count it as a country. Like, you've done Fair Spain, enough, you've yeah, been of to course. Spain. Yeah, I've been to But Spain. Yeah. yeah, I understand what you're saying. जैसे Turkey, I've been to Turkey twice, ठीक है. But I have only done Istanbul, and I have barely gotten out of the European side. So like, and Turkey बहुत बड़ा, it's a beast. Huge, yeah. It's a beast. Like ये Antalya, Izmir, हर Konya, ये it's like a like अगर किसी को क्या है, कोई पाकिस्तान है वैसे कराची, like not to compare, but कराची आ गया, ठीक है. तो You're like तूने कुछ नहीं देखा. तुमने कुछ नहीं देखा, बहुत कुछ है, बहुत कुछ. हाँ सही, इकोनॉमिक हार्ट है, फाइनेंशियल हार्ट है, एवरीथिंग, सब कुछ है, ऑल दैट जैज. बट mountains, Lahore, Yeah. there is a lot to see. So that is how it is. Some countries के अंदर like if I have more time, तो ideal case scenario I'd like to see them properly. So I think Egypt I did it justice. Morocco I did it justice. Turkey, no, I did not do justice to it. मगर कुछ कुछ मुल्क ऐसे भी होते हैं मुबारस जहाँ उनको उधर देखने को सिर्फ वही एक उनका शहर ही होता है. So like you can, अगर आप सर्बिया जाओगे then Belgrade, that's it. उसके आगे कुछ भी, बस उसके कंट्री साइड है, कंट्री साइड है, तो पहाड़ वाला है. बेलग्रेड अगर आपने देख लिया, गुड है, ठीक है. अगर आप जैसे फॉर दैट मैटर लाइक अगर आप मैसेडोनिया जा रहे हो, तो मैसेडोनिया में उनका कैपिटल है स्कॉपियो, और एक लेक ओहरिद है, वो आप देख लो तो आप कह सकते हो मैंने देख लिया है. Okay. काजाख्स्तान जाओ, ऑल्दो है बहुत बड़ा मुल्क, मगर इट्स बेसिकली दो ही शहर है, अलमाती अस्ताना है. अगर आपने देख लिया तो देख लिया, गुड है. But likewise, with that being said, अगर आप थाईलैंड जाओ तो बैंकॉक सिर्फ, no, then that's not justice. You have to. Yeah, the northern side is actually pretty interesting. You know, interestingly, I have not been beyond Nepal. तो मैंने एशिया, साउथ ईस्ट एशिया देखा ही नहीं है. You still haven't, like, beyond Nepal? I have not, बस beyond. Have you been Nepal. to India? No. Okay. No. So my साउथ एशिया में, हमारे इलाके में इंडिया, बांग्लादेश, भूटान रहते हैं. So yeah, Southeast Asia तो मैंने like Malaysia, Thailand, Singapore, I have not been there. By the way, Malaysia is another country where you can go with a US visa on arrival if you have a US visa. नहीं, I did not know that. Yeah, that's what my understanding is. Has anyone done it? I have no idea. I was going through the list once, और मुझे नजर आया था उसका नाम, but ये मैं देखूंगा. But Malaysia is relatively easy. It's e-visa है, like and I see it's easier for people to go. हो जाना चाहिए वहाँ. I have not done Malaysia yet. Even Thailand you get the visa. आपको ज़्यादा बस वो खेपिया वाला जो इशू होता है, उसकी वजह से लोगों को डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं थोड़ा सा, बट वीजा तो दे देते हैं फिर भी. थाईलैंड बहुत पाकिस्तानी जाते हैं, डायरेक्ट फ्लाइट है. हाँ, इंडोनेशिया अगेन, बट अगेन दैट साइड इज अ होल, लाइक आई रियली वांट टू गो टू वियतनाम. A lot of Pakistanis recently are going to Vietnam and Cambodia. वो मिला के कर रहे हैं. Cambodia I've been to. I did it with Thailand, but Vietnam is a place I really want to Again, Vietnam भी वही वाली जगह है, one of those which we're talking about, इसके तुम एक शहर नहीं जा सकते. And Ho Chi Minh City और Hanoi are at opposite ends. And also अगर तुम war के context में देखो, they were also very opposite sides. Exactly, yeah. So you have to try to do both of them. So is this how you also divide places? Like say if you were to go to Vietnam, would you do like a 5-day trip, 7-day trip? I would try to do like a 5-day trip, but at 5-day I would pack it. Like I would, like I am the type of person, मैं एक रात ट्रेन में कहूँगा चल यार मैं ये रात एक होगी, मैं ट्रेन पे सो जाऊँगा, but I will get from Hanoi to Ho Chi Minh. अच्छा, you're okay, fine. I'm not very pressed on comfort. Like some people are very pressed on comfort. मेरा comfort का बस ये है कि बाथरूम साफ हो, ठीक है. और मेरा ये भी comfort का है कि बस बिल्कुल ही फ्ली पिट में नहीं सोना. एंड लाइक जैसे हम आएंगे अभी, अगर हम ट्रैवल मिस्टेक्स की बात करेंगे, आई हैव हैड माई फेयर शेयर ऑफ नाइटमेयर्स उसके अंदर भी, इतनी भी बचत मत करना. बट आई कैन, मैं बस पे सो सकता हूँ, मैं ट्रेन पे सो सकता हूँ, जहाँ हाँ, वी कैन डिस्कस. सो द नेक्स्ट थिंग आई वांटेड टू आस्क यू वाज कि हाउ डू यू बुक अकोमोडेशन, हाउ डू यू डिसाइड कहाँ रहना है. तो एक शहर है, मैंने शहर ढूंढ लिया, मुझे शहर में यहाँ इस इलाके में रहना है. हाउ डू यू पिक द इलाका, नंबर वन, एंड व्हाट आर द कंसिडरेशंस अराउंड पिकिंग द इलाका, एंड बिग मिस्टेक्स सो वी कैन पेपर देम थ्रू द होल. देखो यार, शहर के अंदर ना कई दफ़ा जो बोलते हैं, लाइक आई थिंक जो हमारा मैं कहूँगा न्यूबी जो ट्रैवलर होगा ना, न्यूबी ट्रैवलर होगा, कहेगा यार डाउनटाउन में देखो, या तुम देखो
टूरिस्ट साइट जो है ना, जो ओल्ड टाउन में देखो जाके, एंड दैट इज एक्चुअली अ वेरी रॉन्ग थिंग टू डू, बिकॉज जो डाउनटाउन और जो टूरिस्ट जो ओल्ड सिटी होती है ना, वहाँ क्या होता है, सुबह में तो रौनक होगी, शाम में सब चले जाएंगे, ठीक है, और शाम में क्या होगी, विद जेट लैग एंड एवरीथिंग, आपको लगेगी भूख, मोस्ट लाइकली यू विल बी हंग्री एंड यू विल प्रॉब्ली वेक अप एट एन ऑड आवर, और रात में तो एक सिक्योरिटी, बिकॉज इट बी लाइक कोई होगा नहीं वहाँ, एंड दूसरी बात है थिंग्स विल क्लोज डाउन ओवर देयर. सो आइडियल केस सिनारियो में फाइंड अ हैप्पी मीडियम, कि ये देखो कि दुकानें कहाँ हैं, रेस्टोरेंट्स कहाँ हैं, एंड वेयर डू द लोकल्स गो टू लाइक ठीक है, हैंग आउट, ईट एंड एवरीथिंग. दैट्स वेयर यू शुड लुक. हाउ डू यू सर्च दिस? दिस इज अ लाइक थ्रू, एक तो आप लोगों से थोड़ी बात करो, दूसरी बात है ऑल्सो रिसर्च एंड एवरीथिंग कि हाँ, so if you're going to get more granular or tactical about the research, किस तरह research like करते I'll हो? give you an example, like when we were talking about going to Mexico City, like हाँ. you'd been there earlier Yeah, and yeah. everything, and तुम्ही ने मुझसे बोला था, तुमने कहा था कि बिलाल डाउनटाउन जो हिस्टोरिकल एरिया ना, वहाँ मत ठहरना, तुमने कहा रोमा कोंडेसा में देखना. Yeah. एंड रोमा कोंडेसा स्पेसिफिकली क्यों, बिकॉज रोमा कोंडेसा में लोग जो हैं, वहाँ रेस्टोरेंट्स हैं, सारे रेस्टोरेंट्स हैं, शॉपिंग एंड एवरीथिंग, और वहाँ एक्चुअली लोकल लोग हैंग आउट करते हैं. Yeah. एंड दैट वाज द बेस्ट डिसीजन. और मैंने एक्चुअली पहले गलती से बुक कर लिया था, बिल्कुल जो जोकालो जो उनका इलाका अच्छा, है, जो हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल डाउनटाउन. अब हिस्टोरिकल डाउनटाउन सुबह में तो बहुत रौनक है, रात में तो सिक्योरिटी का मसला, बिकॉज लोग वहाँ होंगे नहीं, कोई भी नहीं होता, खाली पड़ा होगा, ठीक है, यू विल फील अनसेफ एंड यू विल हैव टू, इवन जब आप सुबह में चलो, आप उठ गए, आप मैं शहर एक्सप्लोर करने चले गए एंड एवरीथिंग, तब भी कोई नहीं होगा वहाँ. यू विल हैव टू वेट फॉर अ व्हाइल, यू विल बी बैरिकेटेड इन योर होटल. बनिस्बत कि अगर आप रेस्टोरेंट शॉपिंग वाले इलाके के अंदर हो गए, वहाँ सुबह हो जाती है, वहाँ तुम्हें अपने जैसे ट्रैवलर टाइप लोग भी नजर आएंगे, जहाँ आपको थोड़ी एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है. लाइक इन अमेरिकन सिटीज डाउनटाउन इज नेवर अ गुड आइडिया कि स्टे बिल्कुल इन डाउनटाउन. या दैट इन लाइक अगर हम कराची का भी सोचें एंड एवरीथिंग, अगर मैं किसी को कराची को रेकमेंड करूँ, यस ऑल द ओल्ड the hotels and the bigger names are downtown and everything, but for convenience and everything, I would say look for something where actually people live. Yeah. Where the locals live and everything. So there's some great guest houses on the Defense Clifton side and everything. आपको restaurants भी करीब में मिल जाएंगे खाने पीने. You will get to experience local life, which I'm also getting at. Yeah. Downtown के अंदर ये होगा, तुम बड़े disconnected रहोगे, और सिक्योरिटी का मसला होगा, और खाने पीने का मसला होगा. स्पेशली से फॉर फीमेल ट्रैवलर्स और वुमेन हु आर ट्रैवलिंग, उनके लिए तो और भी ज़्यादा एक लेयर आ जाता है ना सेफ्टी का. या Absolutely. Like even in Latin America, मैं हर जगह जहाँ जहाँ गया था and everything, downtown was always a bad idea कि ना ठहरो downtown. सही. हमेशा बोलते थे कि देखो, जो मुझे एक बात बोली जाती थी, कहते थे बिलाल find something where the locals go to eat, ये एक चीज़ बोलते थे. एंड बाय लोकल्स गो टू ईट, उन्होंने कहा था ये ढाबे वाबे नहीं, देखो ये कहाँ खाते हैं ज़्यादातर, लाइक मिड टियर, लाइक कैफेज किधर हैं. सो आई वुड लुक इनटू दोज एरियाज, और वहाँ मैं शॉर्ट लिस्ट करता था, क्योंकि उस जगह के अंदर रौनक होगी हमेशा. हाँ, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट कि शाम में जहाँ रौनक हो, शाम में जहाँ रौनक हो, क्योंकि यार मुझे तो भूख लगेगी, बिकॉज लाइक अगर मैंने लाइक 10-12 घंटे का मेरा वो है गैप एंड एवरीथिंग, आई एम गोना प्रोबब्ली बी हंग्री आफ्टर अ व्हाइल. सो इट शुड बी समवेयर वेयर यू लाइक, चल यार मैं वॉक करके जा सकता हूँ, या मैं छोटी ऊबर लेके जा सकता हूँ एंड एवरीथिंग. फ्योर लाइक कम्प्लीटली, जैसे इन पैनामा सिटी अगर मैं बात करूँ, मैं गया था, तो पैनामा सिटी का जो ओल्ड टाउन इज ब्यूटीफुल एंड एवरीथिंग, बहुत खूबसूरत है, मगर रात में दैट प्लेस इज स्केची. आई डोंट वांट टू स्टे देयर. आई डोंट वांट टू स्टे देयर. सिमिलरली अगर आप कहो किसी को लाहौर चले जाओ, ठीक है, लाहौर में तुम किसी को कहोगे तुम ओल्ड सिटी में ठहरो, नहीं कभी भी. क्यों ठहरो? The sites are there and everything. Go eat there like and everything, but I would not stay there and everything. I would say like find somewhere, like look into Gulbarg, because Gulbarg में लोग खाना खाने जाते हैं वहाँ. Gulbarg में shopping भी है. Yeah, similarly, like Islamabad does not have an old city or anything, but Islamabad में like look into is new city. Yeah. It's a new city, but look into something in the F6, F7 area. वहाँ guest houses बहुत सारे हैं and everything. रौनक है. So how do you end up booking places for accommodation? Like so say you, of course you're like यार comfort minimum is what your वो है, साफ बात, cleanliness is like top of your list. Cleanliness, yes. How do you find out, like अक्सर तो होता है तस्वीरें तो हर किसी की अच्छी होती है, through trial and error, ठीक है. Yeah, okay. Like I've had my nightmare. I think मोरक्को के अंदर मैं गया था, मैं कैसे वहाँ मैराकेश के अंदर गया था. मोरक्को was a nightmare trip. Like I have to do Morocco again, but that was like, I think, बताओ कभी कभार होता है like वो मैंने नया ट्रैवल शुरू किया था, एक्साइटमेंट हो गई थी, and I was like, and this is my like one piece of advice जो मैं दूंगा someone who's starting off travel, उसको ट्रैवल का बहुत शौक है and everything, मैं कहूँगा जो कुछ दुनिया के जो बहुत बड़े मुल्क हैं ना, like बड़े ट्रैवल मुल्क हैं जो लिस्टों पे आते हैं एवरीथिंग, इसमें मोरक्को होगा, इजिप्ट होगा, इंडिया वुड बी वन ऑफ देम, एंड यू आर डूइंग द होल कंट्री प्रॉपर्ली एंड एवरीथिंग, आई वुड से पहले छोटे मुल्क थोड़े करो.
get some travel experience, then dive into them. Why? Because these are like very heavy countries and heavy touristy, and पहले सीखो ट्रैवल किस तरह करना है. मैंने कोई ट्रैवल के बारे में कुछ पता ही नहीं था, मैं बस पहुंच गया था डायरेक्ट मुंह उठा के लाइक. So what would you say are those things जो सीखनी है? यार यू नीड टू नो हाउ टू पैक सिंपली. यू नीड टू नो किधर आप अपना फ़ोन खोल सकते हो, किधर आप वैल्यूबल फ्लैश कर सकते हो, कौन सा होटल बुक कर सकते हो. दिस माइट बी अ बिट स्केची, व्हाई इज इट सो चीप. यू नीड टू हैव दीज रेडार्स इन योर हेड. ये चीज़ें मेरी लाइक आई वाज लाइक मोरक्को है ना, सस्ता होगा, ठीक है. इट्स अ हॉस्टल, हैज़ ग्रेट रेटिंग्स. सो मैराकेश के अंदर देयर वाज लाइक मैं रात की ट्रेन लेके गया था कैसाब्लैंका से. आई बुक्ड अ हॉस्टल. इट वाज $10 per night and everything. I was like, oh man, great. It's near the Medina, the Jamal Fana, जो उनका मेन स्क्वायर है. I was like, excellent deal है यार. मीटर्स भी देखा, 200 मीटर वॉक करना है, excellent. अब वहाँ पहुँच तो रेटिंग भी इसकी 8.6, 8.6, 8.7 है and everything. वॉक करते करते मैं पहुँच भी गया and everything. एक एली के अंदर थी, थोड़ी स्केची सी थी. अब मैं वहाँ पहुँचा हूँ हॉस्टल के अंदर. हॉस्टल में अजीब सा शेडी टाइप क्राउड वाउड आ रहा है and everything. थोड़ी देर बाद बत्ती जली है मेरी. मैंने कहा ये तो दिस इज लाइक अ मेकशिफ्ट ब्रॉथल है. एंड यू लाइक व्हाट द हेल हैव आई डन, ठीक है. एंड यू नो लाइक, एंड कभी बार द थिंग इज यू हैव टू आल्सो रियलाइज दैट सम ऑफ द रिव्यूज आर आल्सो नॉट ऑथेंटिक. लाइक सम ऑफ देम वो छोड़ देते हैं. सो इसके अंदर आपको बहुत कई दफा आपको एक सिक्स सेंस खोलने होते हैं. इज दिस टू गुड टू बी ट्रू, ठीक है. इतने भी सस्ते के चक्कर में ना जाओ दैट यू एंड अप इन दैट. सो पॉइंट बीइंग आई हैड टू चेक आउट इन द मिडल ऑफ द नाइट एंड एवरीथिंग. और फिर मुझे लाइक उस टाइम पे डिसेंट अकोमोडेशन मुझे अगर मिली तो मुझे $150 की पर नाइट. तो मुझे तो डज लगी ना. सही बात है, ये भी गए और वो भी गए. बिकॉज़ आई हैड टू फाइंड समथिंग. आई लाइक उस जगह के अंदर आप मैं नहीं ठहर सकता. यू कैंट इवन, चलो आप कहोगे यार बिलाल मैं एक रात गुजार लूंगा एंड एवरीथिंग. व्हाट अबाउट योर वैल्यूएबल्स, व्हाट अबाउट योर कैमरा एंड एवरीथिंग विद अ क्राउड लाइक दैट? इट्स ऑल गॉन. So that's my advice that I would give to people is so what websites etc services do you use? I use booking.com a lot. I use Hostel World a lot. Hostel World? Hostel World is good. Like and Hostel, you know the thing is वो बहुत काम आएगा यूरोप वाली साइड के अंदर. अच्छा, हॉस्टल ट्रैवलिंग एक जरा डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रैवलिंग है, राइट? बिकॉज इसमें आप कंफर्ट जोन आउट हो जाता है. हाँ, आप कोई अपनी privacy आप थोड़ी sacrifice कर रहे हैं. And you are now going into like a different open world. What is that? Because but that really makes traveling affordable for you, right? Yes. For a lot of तो people. like Balkans जो थे ना, जब मैंने Balkans सारे किए थे वो मैंने हॉस्टल में किए थे सारे. Okay. And that was very interesting, ठीक है. हॉस्टल का जो है ना एक्सपीरियंस, it's so weird but also very, it's something which I feel like everyone should do because it will get you out of your comfort zone. और अगर आपको true traveler बनना है ना and everything, आपका जो डर होता है एक नए बंदे से बात करना ना, वो निकल जाता है. Like मैं जो like by nature I would say I'm an ambivert, like in the sense कि if I'm comfortable, okay, I'll talk. If I'm not comfortable, I will probably not even initiate the conversation. मैं अपने चुपचाप अपना मुल्क को तस्वीरें अच्छी लेके मैं वापस घर भी चले जाऊंगा. बट हॉस्टल में यू आर कंपेल्ड, यू हैव टू टॉक. लाइक देयर इज नो अदर वे, ठीक है. अगर लाइक यू आर शेयरिंग अ रूम विद 5-6 अदर पीपल, तो वन वे और द अदर. एंड अ लॉट ऑफ दीज पीपल जो आपके साथ शेयर कर रहे होंगे, दीज आर पीपल हु आर एक्सपीरियंस ट्रैवलर्स. तो इवन इफ यू डोंट वांट टू टॉक, दे विल टॉक टू यू, ठीक है. सो या ये वाला थिंग होता है. या अगर आप कमरे में भी नहीं होगे, आप कॉमन स्पेस में जाओगे जहाँ आपको नाश्ता वाश्ता करना है, कोई ना कोई आपके साथ आके बैठ जाएगा. तो सुबह के 6 बजे भी हो सकता है, सुबह के 7 बजे भी होगा, और वो आपकी पूरी लाइफ स्टोरी सुनना चाहेगा. अब आपको बात करनी है हर हाल में. बट हॉस्टल आर ग्रेट इन द सेंस कि बिकॉज वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन भी बहुत मिलती है, आपको लोकल इन्फॉर्मेशन मिलेगी. बिकॉज हॉस्टल वाले जो होते हैं ना, ये वो लोग हैं जो जुगाड़ करते हैं ट्रैवल में. जुगाड़, हाँ, उनके पास ट्रैवल भी बजट ट्रैवलर्स आते हैं, उनके पास हो गया उनके. और वहाँ लोगों को जुगाड़ें पता होती हैं, उनको पता होगी यार बेस्ट ये वॉकिंग टूर कौन सा है, ईजीएस्ट वे उस शहर पहुँचने का कैसा है, मोस्ट टाइम एफिशिएंट वे कैसा है. कभी कभार कोई बंदा होता है वो कॉस्ट स्प्लिट करना चाह रहा होता है, एंड देयर लाइक मेरे साथ चले जाओ, मेरे पास गाड़ी है, पेट्रोल का खर्चा. एंड इट एक्चुअली डज एंड अप बीइंग अ ग्रेट ट्रिप बिकॉज आपको कंपनी मिल जाती है, एंड यू आर लाइक वेट दैट वाज एक्चुअली नॉट अ बैड आइडिया. सो या हॉस्टल्स आर क्वाइट, आई वुड, अगर आपको बहुत थोड़ा स्पेस का इशू है तो कभी कभार आई फाउंड माई सेल्फ मैं हॉस्टल में ही ठहर जाता हूँ, जाके मैं हॉस्टल में प्राइवेट रूम ले लूँगा. ठीक है, वो भी फिर भी सस्ता पड़ेगा, बट वहाँ आपको एक्सपीरियंस एक ऑफ द हॉस्टल मिल जाएगा, लोग मिल जाएंगे, बट यू ऑल्सो हैव योर ओन स्पेस. So ऐसा वाला भी सिलसिला होता है. But other downside is that there's a shared bathroom situation. Oh yes. You will be sharing that bathroom. You cannot just go use it. Yeah. You become very conscious of that line अगर लगी हुई है बाहर,
then आप you find yourself doing weird things in the sense कि you find yourself waking up very early in the morning if you want to take a big bathroom, ठीक है, or you take a shower late in the night when everyone's gone to sleep. So ये चीजें होती हैं, वो आपकी flexibility चली जाती है. But you also learn to become a more conscious traveler, like तो वो has really helped me. I actually learned a lot about myself कि travel किस तरह मुझे बेहतर करना चाहिए, तो through a hostel, like little things like international plug carry करना, ये वाली चीज़, ये बहुत important काम है, ठीक है. आप you will be paralyzed in a country अगर आपके पास वो international plug नहीं है, और आप ढूंढने निकले you'll have to stand and paying quite a bit, like typically. So like मुझे तो hostel से पता चला था कि like literally because मैं पहुंच गया था Balkans और उधर plug कुछ और है, iPhone आपको आप चार्ज करना है and everything, ये वाला तो थोड़ी चार्ज होगा. And then I was like, oh, I kind of जाहिल मैं पूछ रहा हूँ, उन्होंने कहा excuse me, आपका कन्वर्टर नहीं है तुम्हारे पास? मैं कहा कन्वर्टर क्या होता है? कन्वर्टर उसने निकाल के अपने बैग से दिया, तब पता चला ओ ये भी एक चीज़ है जो बैग में होनी चाहिए. सो यू लर्न दीज थिंग्स, आपको थ्रू अदर ट्रैवलर्स ही पता चलता है ये. Okay, so but then the hostel to helps you both, like the people who are operating the hospital are the locals, yes, and they give you the local perspective, and they're used to giving the local perspective to that. And then you also meet fellow travelers who are also experienced. कुछ अच्छे होंगे, कुछ बहुत बुरे भी होंगे. अच्छा, बुरे वाले भी हुए? हाँ, बुरे वाले किस तरह के? Like what are some of the worst things that you've found? Like what are the big mistakes with hostels? मिस्टेक नहीं होता, बस ये है कि तुम्हें आपको हर किस्म का इंसान मिलेगा वहाँ, ठीक है. ठीक है. अब कोई इंसान होंगे जो अच्छे बहुत सोशल होंगे, कोई इंसान होंगे who will make it very clear to you कि why are you in this space, how dare you in this space. अब like अगर आप like जैसे like I was in ये था बोस्निया के अंदर था, सैराजेवो के अंदर था, and I was literally the only person of color in that entire hostel. अब देखो Balkans जो है ना, वो यूरोपियन बच्चों के लिए इट इज़ दैट उनका एक ईट प्रे लव वाला ट्रिप होता है, जहाँ वो कल्चर के लिए जाते हैं, Balkans जाते हैं कि कुछ हम एक कल्चर के लिए यहाँ आ रहे हैं. जबकि मेरे लिए एज एन आउटसाइडर वो फिर भी यूरोप ही है. लाइक इन द वर्ड्स माई मदर, ये गरीब यूरोप है, ठीक है. यूरोप है, हाँ यूरोप है, वो यूरोप है बिल्कुल. प्राइसेस भी आपको यूरो में कोट करेंगे, ठीक है. तो अ लॉट ऑफ तो सैराजेवो वाज वन ऑफ दोज प्लेसेस वेयर I literally and these were all kids from like not to generalize and everything because I'm sure अच्छे लोग भी होंगे, but they're very very like western Europe वाले थे. तो पहला दिन जो मेरा था hostel, because I stayed there 3 days, तो पहला दिन था it's like I felt like किसी को बात ही नहीं करनी, like सब like you know वाला. और वो एक टब्बर आया हुआ था बहुत सारा. Okay. It was the second day जहाँ मैं I think I became more conscious. I was not conscious that I'm the person of color, but I was made to feel that I was. Okay. You get it? Like, कि अगर आप टेबल पे आप नाश्ता करना चाह रहे हो तो लाइक एकदम से सारी सीटें भर जाएंगी, लाइक आप ना बैठो वहाँ, आपके साथ कोई नहीं बैठे, छोटी छोटी चीज़ें हैं एवरीथिंग. सेकंड डे था जहाँ लाइक मैं सुबह में ऐसी नाश्ते वास्ते पे जब गया था, मैं बैठा था, तो उस दिन कोई उस दिन लक ही थी, एंड दैट्स व्हाई आई बिकेम मोर कॉन्शियस ऑफ इट. एक फिलीपींस का लड़का था एंड एवरीथिंग. आई रियलाइज वो आके फॉरन मेरे साथ आके बैठा था, एंड एक उस सॉर्ट ऑफ एक लाइक it's good to see another person of color. I'm like, oh yeah, good. And that's why we became conscious of it, ठीक है. और फिर इतने में क्या हुआ, like नाश्ता चल रहा था, एक बंदा था फ्रांस का, मगर वो he was like a French of African descent. Okay, fine. Yeah. वो भी फिर हमारे साथ आके बैठा, and that's why we became more conscious of this. और फिर 2 थे ब्रिटिश लड़के थे, सुबह में उठ के आए, उन्होंने हमारी टेबल देखी और फिर मोड़ के चले गए. And all three of us, you know, we didn't say anything, but we laughed, ठीक है. Yeah. And the Filipino वो बोलता है, कहता है, I don't think they like our POC conference. So there's good sides, there's bad sides also of it, ठीक है. But I don't let it get to me. I make it a point कि even if I am standing out, मैं फिर भी जाके socialize करूँगा, फिर भी, and you know, you still meet nice people and everything. So yeah, it just puts you a lot out of your comfort zone. अब जैसे वही वाली बात है, समझो ये मेरा like पहला दूसरा कोई big trip है, बोस्निया पहुँच गया हूँ यहाँ, and you're feeling really like conscious of yourself and ये वाली बात है. But I still made it a point कि मैं common room में जाता था, बात करता था and everything, and you know, you get over that that it's just a color. You're like but एक 1.5 दिन लगा था मुझे. Yeah, but okay, this is another thing that I want to ask you about is कि how do you then end up, like what are your hacks to meet friendly locals? कि अगर मुझे इस मुल्क को एक local set of नज़रों से देखना है,
तो वो दोस्त मुझे कैसे मिलेगा जो मुझे वहाँ पे अच्छी तरह से मुझे सिखा सकता है? बहुत इंटरेस्टिंग है, लाइक दिस इज गुड क्वेश्चन। एक तो नंबर 1 लाइक आई सेड हॉस्टल है, और हॉस्टल का जो ओनर होगा वो लोकल ही होगा ज़्यादातर, सही तो है। उससे जाके थोड़े आराम से एक 10-15 मिनट आधा घंटा बातें ज़रूर करना, ठीक है। और उसको तुमसे बात करनी होगी, लाइक वो तुम्हें खुद कटना होगा उस कॉन्वर्सेशन से, बिकॉज वो तुम्हें बहुत बताना चाहेगा, वो क्या Okay. ये भी देख लो, वो भी देख लो, Yeah. तो वो तो इज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। और उसी से पूछना ज़रूर कि फ्री वॉकिंग टूर का है, हर शहर में फ्री वॉकिंग टूर होते हैं अच्छा, एटलीस्ट। फ्री वॉकिंग फ्री टूर, ओके वॉकिंग फाइन। टूर, इट्स नेवर फ्री, यू हैव टू टिप, ठीक है, Yeah, of बट course. एंड इट्स गुड टू टिप, ठीक है, या सही बात है, कोई बी बंदा दैट टाइम निकाल पर्सन रहा है। जो या करना चाहिए। तो फ्री वॉकिंग टूर पे जब आप जाओगे ना, वो भी लोकल स्टूडेंट ही रन कर रहे होंगे, कोई कॉलेज वॉलेज की फीस दे रहा होगा ना एवरीथिंग, और उस फ्री वॉकिंग टूर पे जो है ना, उस बच्चे से भी पूछना जो दे रहा होगा कि, और वो भी, उसको भी तुमसे बहुत बात करनी होगी, और वो तुम्हें सब बताएगा यहाँ खाना वाला थिंग। एंड दूसरी बात है यार, डोंट बी स्केयर्ड टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तीसरी चीज है, या कुछ मुल्कों में आई हैव एक्चुअली मेड फ्रेंड्स ऑन द प्लेन, लिटरली ऑन द प्लेन, क्योंकि कुछ कल्चर्स में दे लाइक टू टॉक। ओके। अब आई गिव यू एन एग्जांपल, एंड दिस वाज एक्चुअली 3 कंट्रीज जहाँ सब ये बैक टू बैक हुआ था। मैं ताजिकिस्तान गया था, किर्गिस्तान भी गया था, सेंट्रल एशिया, ठीक है। ये बस लोग मेरे बराबर में जहाज़ पे बैठे हुए थे। जो ताजिकिस्तान गया था, जिस बंदा था वो मेरे साथ बराबर बैठा था, उसने ऑब्वियसली लाइक आई डिड नॉट लुक लाइक कि या हाँ ताजिक। ताजिक एंड एवरीथिंग। तो उसने कहा तुम कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? मैंने कहा मैं घूमने जा रहा हूँ। तुम घूमने जा रहे हो, मेरे मुल्क घूमने जा रहा हूँ? मैं कहा घूमने जा रहा हूँ। और वो उसने कहा एक सेकंड, मेरा नंबर लो, व्हाट्सएप, वो सारा फॉरेन एक्सचेंज हुआ। अच्छा, वो जो बंदा था वो UFC एक फाइट देखने आया हुआ था अबू धाबी के अंदर, क्या नाम था, इस्लाम माकचाएव नाम था उस बंदे का। एंड पूरा वो ताजिक बॉयज़ आए हुए थे, लाइक 10-15 अपनी फ्लाइट पे, और वो इतने एक्साइटेड हो गए थे कि ताजिकिस्तान में इतने, इट्स नॉट अ टूरिस्ट नहीं टूरिस्टिक, जाते, ठीक हाँ है, बिल्कुल नहीं जाते। सो एक्साइटेड था, ये वाला सीन है। इट वाज द मोस्ट बिजार थिंग, बिकॉज अभी जहाज टेक ऑफ नहीं किया था, उसने फेस टाइम लगाया, उसने फेस टाइम रमज़ान कादिरोव, जो चेचनिया का लीडर, जो लाइक बिल्कुल जो क्रैक लीडर, आई फेस टाइम्ड विद हिम, आई हैव पिक्चर्स, एविडेंस। आई वाज लाइक व्हाट इज हैपनिंग, ही सेड हेलो अस्सलाम वालेकुम, आई डोंट नो व्हाट ही इज सेइंग अबाउट मी, ये बंदा तो कुछ वांटेड लिस्ट पर है एंड एवरीथिंग। तो उसने कहा तुम अभी शहर पहुंचो एंड एवरीथिंग, मैं तुम्हारा सारा। तो उस बंदे ने बकायदा, कोई मुझसे कंसेंट नहीं ली थी अबाउट दिस प्लान, जैसे वही तुम कह रहे हो ना, डू यू मेक प्लान, समटाइम्स द प्लान जस्ट मेक्स इटसेल्फ। सो उसने कहा तुम होटल जाओ, तुम सो, मैं तुम्हें बस एक 3-4 घंटे में तुम्हें मैसेज करूँ। सुबह में उसने मुझे उठाया, हमने नाश्ता वाश्ता करने, उसने पुलाव खिलाया, फिर शाम में पता नहीं वो मुझे कोई क्लब टाइप जगह ले गया था, वहाँ शीशा भी हो रही थी, वहाँ कहता आओ डांस करते ना, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग बट दिस इज फन। सो आई वाज देयर। किर्गिस्तान वाज अनदर वन, वहाँ फ्लाइट पे एक खातून बस मेरे बराबर बैठी हुई थी, वो भी इसी एक्साइटेड हो गई थी, तुम क्यों जा रहे हो, क्या जा रहे हो? फिर उसने कहा मेरी एक दोस्त सामने बैठी है, मैं तो मसरूफ़ हूँ, मेरी दोस्त है यहाँ। मैंने कहा कौन है दोस्त? वो दोस्त आई, दोस्त ने कहा मैं तुम्हें घुमाऊंगी। तो ऐसा हो गया था। अफगानिस्तान वाज अनदर वन। अफगानिस्तान में बेसिकली मैं ट्रांजिट में था इन दुबई, बिकॉज आई वेंट बाय फ्लाई दुबई। सो वहाँ एक बंदा था, वो मुझे पहचान गया था बिकॉज ऑफ द कंटेंट एंड एवरीथिंग, और बहुत साफ उर्दू में मुझसे बात कर रहा था। Yeah, a There lot was, of people speak there Urdu. was, Yeah. but there was no accent. There was no Okay. accent, so I couldn't place Right. where is this person from. And फिर मैंने उसने कहा आप कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा काबुल जा रहा हूँ। इसे काबुल क्यों जा रहे हो? मैं घूमने जा रहा हूँ। इसे आप काबुल जा रहे हो? काबुल जा रहे हो? मैंने कहा हाँ, वाई सो एक्साइटेड? इज लाइक ओह मैं काबुल से हूँ, मैं काबुल जा रहा हूँ, मगर मैं आपका कंटेंट देखता हूँ एंड एवरीथिंग। एंड इसने कहा अच्छा आपकी सीट कहाँ है? मैंने कहा मेरी सीट पीछे है, लाइक 32-33 बाथरूम के पास, टॉयलेट क्लास, ठीक है। तो कह रहे मैं आगे हूँ, लाइक नंबर 8-6 पे हूँ। इज लाइक आप जब जहाज़ से उतरिएगा ना तो मेरा वेट करना। तो मैंने कहा सही है, ठीक है। अब मैं जैसे ही जहाज़ से उतरता हूँ, एंड दिस वाज अर्लियर दिस ईयर, तो मैं जहाज़ से उतर रहा हूँ, फुट ब्रिज पे सामने खड़े में तालिबान बॉयज़ खड़े में, ठीक है। Yeah. काली पकड़ी एंड एवरीथिंग, एंड आई वाज लाइक ओह शिट, ठीक है, गया, ठीक। तो कहते हैं आपका नाम मोहम्मद बिलाल हसन, लाइक इन उर्दू। मैं कहा जी मैं मोहम्मद बिलाल हसन। आइए हमारे साथ चले। मैंने कहा ग्रेट, ठीक है। वो टर्न आउट उस लड़के ने बस बता दिया था कि ये ट्रैवलर हैं, इनका ख्याल रखना। तो बॉयज़ ने मुझे कहा, उन्होंने कहा आप आए, आप डिप्लोमेट लाइन में आए, आप क्यों क्या बात है आप भाई। क्यों लंबी लाइन में, आप क्यों लाइन में खड़ा हो रहे हो, ठीक है। उसने कहा क्यों मार साहब? उसने मेरा साइन वो करा, साइन कहा वेलकम योर, तुम्हारा कोई है यहाँ, कोई है जानने वाला यहाँ? मैं कहा एक दोस्त है मेरा, एक फरहान मेरा बाहर दोस्त खड़ा हुआ है। तो और मुझे इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि बिलाल डोंट, ये भी जैसे कभी बार कुछ मुल्कों में इंस्ट्रक्शन होती है, तो कहा था डोंट
ड्रेस अप एज अ टूरिस्ट, डू ड्रेस अप एज अ फुल टूरिस्ट, ड्रेस अप एज अ टूरिस्ट कह रहा है, दे विल स्टीरियोटाइप यू अगर तुम ज्यादा लाइक शलवार, कह रहे मुल्क में शलवार कमीज पहनना, बट एयरपोर्ट पे go full blown American, ठीक है, so that they like treat you like a tourist, yes, exactly, and they respect tourists, exactly, okay, ठीक है, और कहते हैं and you are bringing money to them, ठीक है, so मैंने like full jeans टी-शर्ट बेसबॉल कैप वैप लगा के गया हुआ and everything, तो वो कह रहा था ये मैं तुम्हारे साथ चल के आएगा, देखना है तुम्हारा कोई है भी नहीं, कह रहा था कोई पागल आ गया ना बर्गर, ठीक है, वो मेरे साथ and Kabul airport is such that it takes 20 minutes to get out because there's so many security barriers, and I was like this is why is this not ending. अब बाहर पहुंचता हूँ, मेरा जो दोस्त फरहान is full उसी अटायर में जो जिनकी तरह बॉयज हैं, ठीक है, मुझे देखता है, इसको देखता है, कहता है तू पागल है, बिल्कुल पागल है, तो यार पॉइंट बीइंग लाइक so there's many ways to meet the locals, some ways, sometimes the locals will meet you, it will just happen, you just have to be open to it, you have to be open but to जो that. आपको जो जितने भी con artists होते हैं वो भी बड़े आपको खुद ही आके अप्रोच करते हैं, exactly so how do you tell a con artist from a that is where helpful you local? should read forums, ठीक है, about some countries, and where would you say the forum? I see Reddit is very Reddit good, is the best one, Reddit is solid, so like मेरी गलती थी कि I did not read Reddit before going to Morocco because I got conned everywhere उस मुल्क में, and by the way I wish I had read Reddit because everything was written over there, ठीक है, literally हर scam बताया हुआ था, everything उन्होंने लिखा हुआ था, और भाई साहब हर scam के लिए fell for it, ठीक है, they had written things के यहाँ ये होगा, यहाँ ये होगा, और वो मेरे साथ हुआ क्योंकि मैंने Reddit नहीं पढ़ा. Are there any scams that you can share that you like the common ones that you see across the world? यार एक तो एक तो इस्तांबुल में जो होता है, जो बहुत होता है, और ये मैं और एक मेरा दोस्त हम देख रहे थे, अब हमें पता चल जाएगा हो रहा है, तो एक बंदा होता है सामने आपके चलता जाएगा, और वो एकदम से जो है ना, जैसी आपके पीछे होगा ना, वो अपना वो शू शाइनर होगा, और वो एकदम से अपना वो गिरा देगा आपके सामने, एंड यू लाइक ओ उठा लो, आपने हाथ लगाया है उसको शू शाइनर को, वो चीखे बना, वो कहेगा ओ नहीं अब तुम्हारे जूते शाइन करो ये, और तुमने उठाया कैसे, ओ ये, एंड ही विल मेक अ सीन, ठीक है, ये वाला होता है. फिर एक होते हैं जो बच्चे जो खाना गिरा देते हैं, ठीक है, एंड आप और वो रोना शुरू हो जाएगा, आपका दिल टूट रहा है, बच्चे रो रहे हैं, और प्यारे बच्चे होंगे, जानबूझ के वो करते हैं, जानबूझ के करते हैं ये, एंड यू विल बी लाइक ओ आई एम सो सॉरी, और वो आप अपना वॉलेट निकाल के वहाँ दे रहे हो, पीछे से उसकी अम्मा या उसका अब्बा या किसी ने आपका ये सब and they just frazzle you so much कि yes pickpocket भी करना पता नहीं चलेगा, everything ये वाली थिंग है. और एक जो बहुत बड़ी चीज़ है एंड एवरीथिंग, जैसे जो मोरक्को के अंदर जो बड़ा प्रॉब्लम, मोरक्को में राइड हेलिंग एप्स नहीं है, सबसे बड़ा स्कैम आर द टैक्सी ड्राइवर्स, सो यू हैव टू बेसिकली, अच्छा, एंड द थिंग इज मोरक्को में एक जो चीज़ है, देयर इज अ लैंग्वेज बैरियर, सो इट्स अरबिक एंड फ्रेंच. oh so there's no English, you are screwed. I had not read into any of this. I just walked in blind. So basically मेरे साथ क्या हुआ था, मैं दूसरा डे I'm there, I'm in Casablanca. This is supposed to be the greatest trip of my life अभी तक जो था, because मैंने कहा मोरक्को यार बड़ा मुल्क. Also you went, I remember you went during the World Cup as well, no? And they were doing really well. Yes. So I went right then. I was so excited. I was like, World Cup है, उनकी जो सारे टीम, उनकी posters और so, I was so excited, and I was like, it's a big country to tick off. So you are obviously, you've seen the photos and everything. I get to Morocco, get to Casablanca. दूसरा दिन मैं पागल, ठीक है, and this was written on Reddit not to do this. मैं निकला हूँ ट्रेन स्टेशन से, और ट्रेन स्टेशन के बाहर ही निकला हूँ, मैंने कहा मैं गूगल मैप देख रहा हूँ, मैंने कहा मेरा होटल इतना दूर नहीं है, I'll just walk over there. अच्छा, मैं ट्रेन स्टेशन निकला हूँ, थोड़ा बस मैं अपना फ़ोन देखता जा रहा हूँ and everything, and स्केच था, लाइक वो नहीं है, मगर मैंने कहा इतना कोई बिग डील नहीं है, यूरोपियन वाइब्स हैं, बड़ा मैं कराची से आया हूँ, ये वाली जो स्टूपिडिटी, ठीक है, पीछे से बंदा आया है मोपेड पे, मेरा फ़ोन छीन के भाग गया. मेरा फ़ोन कराची में कभी नहीं छिना है, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा छिना है तो मेरा काम मोरक्को में छिना है. अच्छा, एंड दिस इट जस्ट केप्ट ऑन गेटिंग मोर बिजार द नाइट. तो वो रात में फिर आई स्टार्टेड स्क्रीमिंग, आई वाज लाइक ये क्या, फिर एकदम से एक हुजूम जमा हुआ मेरे इर्द गिर्द, ठीक है, एंड आई डोंट स्पीक अरबिक, आई डोंट स्पीक फ्रेंच, एंड आई कैन नॉट, आप एक बंदे को नहीं ट्रस्ट कर सकते यहाँ, आपको पता नहीं है. अच्छा, फिर एक खातून थी, वो वहाँ खड़ी हुई थी, और उसको अंग्रेज़ी आती थी, उसने कहा था, शीज़ लाइक डोंट ट्रस्ट एनीवन ओवर हियर, मैं अमेरिका से आई हूँ, मैं घूमने आई हूँ एंड एवरीथिंग. शीज़ लाइक इधर आओ, मेरे साथ चलो, इधर कैफे में बैठो. फिर मैं कह रहा हूँ मैं इसके साथ क्यों जा रहा हूँ, इसके साथ क्यों जा रहा हूँ, ठीक है, सो यू कैन ट्रस्ट एनीवन, ठीक है. फिर खैर वो अच्छी बंदी निकली थी, शी वाज फ्रेजल, और फिर 2-3 लड़के थे उसने जमा किए थे, वो उनको भी अंग्रेज़ी आती थी. तो उन्होंने कहा, तो उन्होंने अपना वो लैपटॉप खोला, वहाँ मैंने अपना वो iCloud ब्लॉक वॉक किया, उन्होंने कहा यार ये हमारे शहर में बहुत हो रहा है, मसला है,
तुम जाओ पुलिस रिपोर्ट लिखाओ, ठीक है, पुलिस रिपोर्ट, ठीक है। मैं पुलिस में पहुंचा, ठीक है, वहाँ क्या है, वहाँ तो सिर्फ उसने सबसे पहला सवाल क्या पूछा, उसने कहा वेन बाला तुम किस मुल्क से हो एंड एवरीथिंग, मैंने कहा पाकिस्तान। अच्छा, उसने कहा पाकिस्तान, पाकिस्तान, उसामा बिन लादेन, बूम। मैंने कहा बस इसको, ये तो मुझे हेल्प ही नहीं कर रहा, ये तो मुझे हेल्प ही नहीं कर रहा। सो इट वाज बिजार एंड समहाउ मुझे उसको अरबी फ्रेंच में समझाना कि मेरा फ़ोन चोरी हो गया है। उसने पाकिस्तान, उसामा बिन लादेन, बूम, मुझे लेके पुलिस वैन में लॉक कर दिया। Put you in a police van. Locked me in the police van, ठीक है। So it was such a bizarre situation. और फिर कोई बंदा था वो बीच में उसको कह रहा था नहीं नहीं इसका फ़ोन चोरी हुआ, ये चोर नहीं है। और इट वाज लाइक इडियट को लग रहा था चोर खुद आ गया, हेलो हाय मैंने फ़ोन चोरी किया पाकिस्तान, ठीक है। और उसने कहा ये चल तुझे बंद कर दें। इट वाज द मोस्ट बिजार ट्रिप एवर ऑफ माई लाइफ। मगर ये रेडिट पे अगर आप पढ़ो तो ये लिखा हुआ है सामने, लोगों के फ़ोन छिने हैं कैसाब्लैंका ट्रेन स्टेशन के बाहर से। एंड इट्स अ वेरी न्यूबी रुकी मिस्टेक टू टेक आउट योर वैल्यूबल राइट आउटसाइड द ट्रेन स्टेशन। यू डोंट डू दिस स्टफ, ठीक है। और मैंने भी लाइक कुछ क्योंकि मुझे टैक्सी ड्राइवर से बहस नहीं करनी थी, मौसम अच्छा था, मैंने कहा वॉक कर लेते हैं, ठीक है। Don't do that. Fair enough. So basically Reddit पे जाए. Are there any forums that you recommend on Reddit? Reddit पे बहुत सारे हैं. Just look up the country and everything. So like I had a great Egypt trip, and Egypt is full of scams. But I had a great Egypt because मैंने पढ़े हुए थे. सारे पढ़ के कैसे? सब पता था. सब पता था. I was like ये है नहीं, बात मत करना, हाथ मत लगाना, ठीक है. ठीक. ये वाली चीजें. So I knew all of that. Because everyone had said like if you go read Reddit, 3 मुल्क हैं, इजिप्ट के बहुत हैं स्कैम, मोरक्को के बहुत स्कैम हैं, इंडिया के बहुत हैं। बट एवरीवन सेज इफ यू are well aware of them, you will have a great trip. India type में तो हम will be fine because they don't think of us हम ज़बान बोलते हैं ना, so at least North India तक तो हमें हाँ वो तो पता भी नहीं चलेगा उनको कि हम वो you've been. I've been yeah. And you said you had a great time there. I had a great time. Like and also they a lot of people, I was in Bombay and a lot of people did not really वो तो मान भी नहीं रहते। मैं कहनी मैं पाकिस्तान से आया, बकवास कर रहे हो, like you know ऐसी जोक मजाक कर रहे हो, दिल्ली वाले हो, but नहीं so coming to flights, yes, how do you like, because if you एक जो मैंने पाकिस्तान में मैंने एक चीज़ prevalent देखी है कि अगर मैं एक टिकट ले रहा हूँ तो इसको फुल निचोड़ के आऊँगा तो कम से कम 2 हफ्ते 10 दिन तो लगाऊंगा मैं, राइट? लाइक मतलब पूरा इसका वो लेना है। अमेरिका अगर जा रहे हो तो महीने के लिए जाओ, वरना तो कोई फायदा नहीं है। मैं तो महीने गया ही नहीं हूँ अमेरिका। Exactly. So how do you, number one, what is the best way to book cheap tickets for international travel? Are there any hacks? How do you think about that? यार पहले तो सबसे पहली जो चीज़ है इज़ फिगर आउट योर डेट्स। आपको जाना कब है, ठीक है। अगर आपका बिल्कुल सॉलिड प्लान है कि यार ये टाइम है, अब जैसे लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ, मुझे जो है एंड नवंबर बिगिनिंग दिसंबर मुझे पता चल गया था कि यार ये मेरा एक फारिग टाइम है, मेरी बहन की भी छुट्टी है, मुझे न्यूयॉर्क जाना है इसका, ठीक है। तो एक चीज़ है, फिर मैंने कहा मुझे तो फ्लाइट बुक करनी है अभी फ़ौरन की फ़ौरन। एक और चीज़ है, बिफोर बुकिंग लुक सेल्स कब आती हैं। अब जो अच्छी सेल्स हमारे रीजन में दैट यू हैव टू लुक आउट फॉर, एक इत्तेहाद की बड़ी सेल होती है, एक एमिरेट्स की बहुत अच्छी सेल होती है और कतर, तीनों की होती हैं। टर्किश की मैंने कभी देखी नहीं, मगर इन 3 की बहुत बड़ी बड़ी सेल्स होती हैं। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, लाइक इत्तेहाद का जो आम तौर पे जो टिकट होगा एंड एवरीथिंग वो 4.5-5, दैट्स अ वेरी एक्सपेंसिव टिकट एंड टू द यूएस, ठीक है। बट मुझे JFK का 180-190 में मिल गया था इत्तेहाद का, ठीक है। इत्तेहाद का सेल थी, मैंने सेल पे ले लिया था, ठीक है। वो सेल थी एंड सेल पे कुछ वो 50% कुछ चल रहा था एंड एवरीथिंग, सो आई जस्ट बुक्ड इट, ठीक है। आई एम प्रिपेयर्ड, इट विल नॉट बी अ ग्रेट फ्लाइट, ठीक है, बट आई विल गेट देयर। व्हाई वुड इट नॉट बी अ ग्रेट फ्लाइट? जो सेल वाली होती है मुझे पता, आपको पता है ना कैसी होती है। हाँ, कि उसमें आपको मिडिल सीट वगैरह, आप सीट नहीं चेंज कर सकते, ये वाली कुछ ना कुछ होगी रिजिडिटी, बट आई एम वेरी अबाउट पॉइंट ए टू बी। सही है, बस पहुंचा दो मुझे, बाकी वो है, ठीक है। सो आई गॉट दैट, ठीक है। सो जब पता चला था मेरी बहन के पास जाना था, तो मैंने आई थिंक जून जुलाई में आई हैड माई टिकट। सो पॉइंट बीइंग, वंस यू हैव योर टिकट इन हैंड, आपका बड़ा खर्चा तो हो गया ऑलरेडी, सो आप चिल हो गए हो। अब मैं चिल था, मैंने कहा टिकट तो हो गया। नेक्स्ट चीज़ अकोमोडेशन वाला सीन हो तो मैं बाद में, हाँ, यू लुक इनटू दैट। अब जैसे तुम कह रहे हो जो निचोड़ कर आने वाली बात है, बिकॉज माई थिंग इज अगर मैं US जा रहा हूँ तो या तो मैं बराबर कोई एडवेंचर तो करो यार, बहुत बड़ा मुल्क है, या तो वहाँ देखो, या गोइंग टू लुक इनटू अनदर कंट्री एंड एवरीथिंग। सो दैट्स व्हाट आई ऑलवेज डू। सो आई वाज लाइक ओके,
अब नाउ कैरिबियन में 1-2 और मुल्क और कर आएंगे, ठीक है। नहीं, that's interesting, but okay, इसके अलावा so you think just does it matter how you look for flights, like is there any website I etc. use Skyscanner a lot. Skyscanner for international, सस्ता ticket for local. But Okay. local में to be honest same ही हाँ, range है, लोकल में तो तकरीबन इतना डिस्काउंट का ऑप्शन कोई वो नहीं नहीं है, है, and but you don't save a but significant amount. Skyscanner is very good. And Okay. Skyscanner अब तो skyscanner.pk पे आता है, so it's very आपको फ्लाई रुपए के अंदर भी आएंगे, कंपैरिजन भी आएंगे। देखो फॉर लॉन्ग रन लाइक अमेरिका के लिए तो या दीज आर द बिग वंस, बट डू ऑल्सो लुक इनटू लाइक दीज छोटी छोटी फ्लाइट्स एंड एवरीथिंग। सो अगर जैसे बॉल्कन्स जाना है ना, बॉल्कन्स जैसे मैं अल्बानिया में 70-80 हज़ार में रिटर्न टिकट में गया था पेगासस पे, ठीक है। Okay. How is Pegasus as an airline? It's a budget airline, I know, but You know, to be honest, I think Pegasus is a very good airline. The leg space is very good. It is much better than Fly Dubai. Fly Dubai is I get anxiety if I have to travel with Fly Dubai. Okay. Especially the Karachi to Dubai leg. The Karachi to Dubai leg is वो आप बस में जा रहे होते हैं वो essentially. वो आप W11 शिराज कोच पे आप जा रहे हो, सही ठीक बात है, मेरे को वो सीन होता उसके है. बियॉन्ड इट्स ओके, बट या पेगासस इज वेरी गुड। पेगासस मैंने पूरा बॉल्कन्स घूमा है और बहुत अच्छी सॉलिड फ्लाइट है मुझे मिली है। सो कीप एन आई ऑन दैट। एयर अरेबिया इज़ अ वेरी गुड बजट ऑप्शन। फ्लाई दुबई है। अनदर वन इज़ लाइक जो विच आई हैवंट लुक्ड इनटू बट आई हैव हर्ड रिव्यूज ऑफ इट इज, अगर आपको अफ्रीका साइड देंगे तो इथियोपियन एयर। That's what I was gonna just ask you right now. I've heard like some people went and they really liked it. It's an excellent airline Because you get and Addis Ababa it's as a well. direct flight एडिस की कराची से, हाँ, ठीक तो है। और आप वहाँ पे जब एक बार चले जाते हो फिर उसके बाद आपको एक दिन वहाँ पे भी गुजारने को मिलता है. मेरे साथ My brother didn't like it, but I've heard good reviews. I mean, otherwise. I'm sure it's not Emirates and everything, but I think Africa की is one of the best airlines, ठीक है। If you are going to stop in Africa, then maybe great. But the review that I got was कि यार अगर आपने से direct पहुंचना है, New York पहुंचना है, for example, that's where he was going. He's like, यार I could have just gotten to New York 18 hours earlier. वो बात 13 है, hours earlier. No, but like अगर आप Africa is like 54 countries, so अगर आप Africa explore करने जा रहे हो, I think Pakistan से that's an excellent option. Another चीज़ जो मैं अक्सर करता हूँ is कभी कभार एक फ़्लाइट कॉम्बिनेशन भी बनाओ एंड एवरीथिंग। जैसे कि मुझे काज़ाकिस्तान जाना था, तो काज़ाकिस्तान का जो है मैंने कॉम्बिनेशन देखा था, लाइक अगर तुम जाओगे फ्लाई दुबई से एंड एवरीथिंग आपको 180-190 का फ़्लाइट मिलेगी, बट काज़ाकिस्तान से लाहौर से डायरेक्ट फ़्लाइट जा रही थी और 60-70 हज़ार की थी। अब 60-70 हज़ार वो लाहौर थी, कराची टू लाहौर में जाऊँ 30-35, तो मैं 90 हज़ार में पहुंच गया था काज़ाकिस्तान। Yeah, okay. So you can do these things, like do play around, don't because कभी कभार लाहौर से कोई जा रही होगी, कभी जैसे कोलालमपुर जो है डायरेक्ट फ्लाइट इस्लामाबाद से जाती है PIA की। Really? And that's a good flight? Like that's a cheap flight? I think it's an okay flight and everything. And Kuala Lumpur is a very बहुत लोग जाते हैं, but Yes, it's a great place just generally. but a lot of people जो Kuala Lumpur का combination करते हैं, either they go by Emirates or they go by Thai, and I feel like if you're saving time, just take a direct flight. Batik Air I think आती है, but I haven't heard any reviews for it. Yeah. Okay. So I'm always open to experimenting new airlines. So and that's just Skyscanner. You just put मैं यहाँ पे हूँ, मुझे यहाँ जाना है. मैं तो मल्टी सिटी भी बना लेता हूँ, मैं पूरा रूट बना के देता हूँ, मैं कहता हूँ ये और फिर उसमें से कभी कभार I pick and choose. I was like, I like this, I don't like this, I like this and everything. फिर कभी कभार कुछ होंगे मुल्क होंगे जहाँ मुझे लगता है यार ये बराबर में मैं ड्राइव करके जा सकता हूँ, तो जहाँ से पहुँच जाओ बस ले लेना. सो I've done that. So Balkans I did like that. Like I flew to Bosnia but went by bus to Montenegro. So yeah, बस 30 यूरो की है. Might as well just get there. हाँ नहीं makes sense. ठीक है. And I think Europe is like that. Like I haven't Europe में तो I haven't done Europe, but Europe is like एक जगह से fly करो दूसरे से निकल जाओ and just बीच में सब कुछ कर लो. Flix bus वही सारी कर लो. There's also excellent trains etc. There's some places you need to take a flight. It's quicker, cheaper, but trains are also great. Absolutely, yeah. Coming to our second part, like so, how do you budget the trip? What are your big heads बजटिंग के लिए कि यार एक ये खर्चा है पर डे मेरा इतना खर्चा होगा, किस तरह करते हैं? I actually am not the type जो बजट करता हूँ. I'm very like I do जो बेसिक जो बड़ी चीज़ है फ्लाइट, ठीक है. Okay. मेरा एम होता है गेट दैट आउट ऑफ द वे ASAP, ठीक है, इसको निकालो. And वो जो होती है ना, या तो the minute you know about your dates, so get that out of the way, because by the time your trip comes ना, तो you don't want to worry about that. दूसरा एक होता है ट्रांसपोर्ट. कोई मुल्कों में that becomes very expensive, कोई मुल्कों में it's
very cheap because you have good public transport. हाँ. अब जैसे मैं अगर जो ये कैरिबियन गया था, not Trinidad में तो I had friends and everything, but Barbados के अंदर I had no choice. I had to like basically hire a car for a day and everything, और आपको $200 की डज पड़ेगी basically. Yeah. Okay. So Yeah. that's it. Basically you have to just take that, या कुछ भी ना देखो, ये वाली thing है. कोई बनिस्बत के कुछ मुल्क हैं, like for example even like Qatar has a good public transportation system. All over is connected by subways. अच्छा, all over. It's not like Dubai जिसमें बस एक no, certain part. The whole country is connected by like a metro, ठीक है. Okay. So उसके अंदर basically I think like $7 per day का कुछ है, कार्ड भी है, like आप बहुत मिनिमल में आप जो है ना आप पूरा मुल्क देख सकते हो. तो वो था. Even Istanbul is very like yeah, the public transport. So public transport is good. So again that is another big head. तीसरा जो होता है जैसे मुझे जो है is miscellaneous. Miscellaneous में ये है कि मैं this is where I actually do कि क्या चीज़ देखनी ज़रूरी है, क्या नहीं देखनी ज़रूरी है. क्योंकि कुछ जगहें होंगी जहाँ एंट्रेंस फीस होगी. And I was like, do I want to see it? Do I not want to see it? Am I interested about this? तो ये वाली चीज़ है. जैसे इस्तांबुल में like the Hagia Sophia के अंदर जाना है इस €25 अब है, ठीक है. Yeah. अगर आपको ऊपर गैलरी तक जाना है, अगर आपको नमाज पढ़नी है तो आप वो नीचे फ्री में चले जाओ and everything. So then you weigh the pros and cons. You're like, do I really want it? Do I not want it? ये वाला thing है. टोकापीज़ like अब तो €35 है. So I was like, मुझे नहीं देखना, like मैं सही बात है. मुझे म्यूजियम नहीं देखना, मुझे इतना नहीं तरस रहा. गलाटा के ऊपर भी जाना भी ऑलमोस्ट €20-25 and then you're like, and point being then you also weigh the pros and cons. You're like, can I get the same view somewhere else? And Istanbul there's views everywhere. So ये आपको चीज़ें weigh करनी होती हैं, like. And then खाना then मैं अच्छा खाना खाता हूँ. That is my big expenditure. अब खाने पे आते हैं. क्योंकि खाने पे तो आप बहुत like you can eat for $500 in a meal as well. Yes. Right? वो तो कोई इसमें depends on where you're going. Yeah. कोई इसमें limit नहीं है. Yeah. Okay. How do you identify the food you want to eat in a place that you travel to? किस तरह खाना, मतलब यार ये खाना है, ये सुना है, क्योंकि वैसे तो बहुत चीज़ आ जाती है उसमें. बहुत चीज़ आ जाती है. अच्छा देख, बात मैं बताऊँ मुबारक, I have a very strong sweet tooth, ठीक है. Okay. तो मेरा same यार. and that is a problem, Yeah. ठीक है. और मेरा हाथ नहीं रुकता है उसके ऊपर. So I'm actually very excited about these things कि ओह यहाँ मीठा क्या है खाने को. अच्छा कुछ मुल्कों के अंदर कोई मीठा कल्चर है ही नहीं, तो कुछ मुल्कों में they're very big on मीठास. So I also like I eat a lot at like bakeries, ये cakes, pastries ये बहुत खाऊंगा मैं. दूसरी बात ये होती है कि honestly like I also just asked the locals. I was like, what is यहाँ मुझे खाना क्या चाहिए and everything. अच्छा कुछ मुल्क हैं, जैसे मैं अभी ट्रिनिडाड टोबैगो गया था, knew nothing about the country but it was turned out to be one of the top food destinations of my life, and really? I will say that. Wow. Because it's like it's a mix of South Asian and Caribbean cultures, and they're very like 50-50 in population, और उनके खाने mixed है. So आपको एक उनके जो खाना है जिसको डबल्स कहते हैं, डबल्स इज बेसिकली पूरी होगी, उसके ऊपर चने टाइप है, काइंड ऑफ लाइक दैट, मगर उसके ऊपर एक चटनी है जो इज वेरी कैरिबियन, लाइक मीठी भी नहीं है, मिर्चें भी नहीं है, कुछ है, एंड इट जस्ट वर्क्स. फिर उनका एक खाना है जिसको कहते हैं शार्क एंड बेक है, which you have to have. It's like it tastes like a Zinger Mighty, like a very elevated Zinger Mighty, and it's like a fried fillet of shark. So point being, ask the locals, उनसे पूछो खाना क्या चाहिए, and just eat it. Okay, fine. So I'm very much like. But do you do any advance research on it? कि यार मैं जाने से पहले जरा research. यार एक बात बताऊँ, मैं ये बात बताऊँ, एक्सपीरियंस से ये है, कई दफ़ा एडवांस रिसर्च में जो कहेंगे ना यार ये रेस्टोरेंट है, यहाँ ज़रूर खाना, ये ज़रूर है, टिक ऑफ एंड एवरीथिंग, it actually ends up disappointing a lot because कई दफ़ा वहाँ जो है वो टूरिस्ट जाके खाना खाते हैं, वो टूरिस्ट जाके खाते हैं वहाँ. लोकल से पूछो वो कहाँ खाता है. अब जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं न्यूयॉर्क जब पहली दफ़ा गया था तो न्यूयॉर्क में सब ने कहा था न्यूयॉर्क का बेस्ट पिज़्ज़ा जोज़ पिज़्ज़ा, जो जाके खाना, आइलीन का चीज़ केक खाना, और एक और कौन सा चीज़ केक है, जूनियर का चीज़ केक, ये सारा. पॉइंट बीइंग दीज आर ऑल प्लेसेस वेयर कोई लोकल जाता ही नहीं है. तो न्यूयॉर्क का सीन फिर मैंने बाद में सीखा था कि यार न्यूयॉर्कर से पूछो कहाँ जाते हैं, न्यूयॉर्कर बोडेगा में जाके खाना खाते हैं, ठीक है, बोडेगा या न्यूयॉर्क अपने नेबरहुड वाले पिज़्ज़ा, और ये बिल्कुल नॉन डिस्क्रिप्ट टाइप चीज़ होगी मगर वो अच्छी होगी. न्यूयॉर्कर कभी आपको बुरी चीज़ नहीं बताया because it's also a very big food city. Yeah, it's a very competitive food scene. And same thing मैंने लंदन में देखी थी. ये सेम चीज़ मैंने लंदन में देखी. लंदन में तुम लिस्टें देखोगे, उसमें लिखा होगा जैसे तैयब जाओ, तैयब एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, बड़ा फेमस एंड एवरीथिंग, go there, eat there and everything. I was very disappointed. I was like, this is very mid Pakistani food and everything. Yeah.
एंड एक है Even Dishoom in London, I didn't like the food that much. Yeah. और एक है हेलन का शवरमा है क्या, जो लोग बहुत कौन सी वो उसका नाम है, एजवेयर रोड के ऊपर है हेलन का शवरमा. This is really miss. So point being, when I started talking to locals and everything, I found much better option. So that's where I think, जैसे अगर तुम कराची भी आओ, कोई बंदा तुम कराची है, तुम कराची में तुम मुझसे पूछोगे कि कहाँ का, आई विल टेल यू डिफरेंट. तुम लिस्टें देखोगे, लिस्टों में तुम्हारा टॉप क्या आ रहे होंगे, मैं नाम नहीं लूंगा रेस्टोरेंट्स, बट द रेस्टोरेंट्स दैट यू विल गेट ऑन टॉप, यू लाइक आई डोंट थिंक आई गो देयर, आई हैव नेवर गॉन देयर इन इयर्स. व्हाई आर दे ऑन द नंबर 1? ठीक है, 2. Okay, fine. But because tourists review it, ठीक है, like it's they're like, yeah. I've never had a look at any Karachi lists for food, to be very honest. Lal Qila is number 1. Lal Qila is number 1. Yeah, Lal Qila is number 1. I don't know when I went there. I went for someone's shaadi ki dawat. It's always a shaadi ki dawat. When I was a kid, like I'm pretty sure. I mean, food's okay, but I was like, I haven't been there in years, and I don't think वो मेरे top 10 radar पे भी आएगा. But don't you think lists अब थोड़ी change हो गई हैं? Because now I just go on Instagram, और Instagram पे लोगों की एक और ही scene होता है. That's the thing, ठीक है? You go on Instagram, talk to someone there. In fact, बताऊँ एक और जो चीज़ which I actually do recently is actually, जब मैं टैक्सी में या उबर में बैठूंगा, मैं उससे पूछूंगा तुम खाना कहाँ खाते हो, और तुम एक चीज़ मुझे बताओ, मुझे क्या खानी चाहिए, and they'll always have a recommendation. ठीक है? I've very often, quite many times, वो like टैक्सी में इतने एक्साइटेड जाते, कहते like it's either lunch time or something, वो कहते हैं can we stop, अच्छा मैं तुम्हें ले जाता हूँ, and they literally just stop and we end up having a meal over there, and these are some of the best interactions that I've had. ये एक ताजिकिस्तान में हुआ था and everything. बीच में मेरा होस्ट कहीं भाग गया था, तो मैं भाग के टैक्सी में चले गया था, तो उसने मुझसे कहा था कि, मैंने पूछा कहाँ खाते हो, इसे वो लंच टाइम हो रहा है, मैं तुम्हें पुलाव खिलाता हूँ, बेस्ट पुलाव है, और एक्चुअली बहुत अच्छा पुलाव था. लाइक तो या यू नीड टू लाइक थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ता है, बट दैट्स वेयर यू विल फाइंड इट. एंड यू आल्सो हैव टू बी ओपन टू, यू हैव टू बी ओपन टू इंटरेक्शन, एंड यू हैव टू बी ओपन टू शायद वो तुम्हें ले भी जाए एंड एवरीथिंग, एंड यू जस्ट सिट देयर एंड एवरीथिंग. So yeah, that's how it, like, I've done my thing. Have you found Reddit or any other tool to be good for? Not for food. Not for food? Not for food. Reddit is good for safety, security, scams. ठीक है? खाना, लोगों से बातें करो and everything. जैसे Trinidad में I had two local very Trinidad people and everything, और उनका बस था, उनका यहाँ का डबल्स खाना है, यहाँ का शार्क एंड बेक है, ये और वहाँ लोकल कम्युनिटी, वो लोकल खा रहे थे वहाँ बैठ के. मैंने एक बुरी चीज नहीं खाई थी उस मुल्क में, एक बुरी चीज नहीं खाई थी. And that's a big thing, because हर जगह पे कुछ मिस मील्स कुछ हो सकता है, कभी बार आपका होता है ये वाला थिंग है, तो बट किस तुम उसके साथ होगे ना, वो तुम्हें बताएगा क्या खाना है. एंड Trinidad also is not a touristy country, so you just have to. So yeah, that ये वाली चीजें होती है. No, that's and then again, for food, what kind of budgets do you do? Oh, I'm open. I'm open. That is where I'm like, मैंने कहा हाँ मैं स्ट्रीट भी खा लूँगा, but I'm also like कि चलो अगर कोई एक अच्छा रेस्टोरेंट है और अगर लोकल ने रेकमेंड किया है कि यार अगर तुम्हें थोड़ा सा खर्चा करना है ना और एक जगह खाना है, यहाँ ज़रूर खाना है, everything. So it's worth it. Yeah. It's worth it. So I will make that like exception कि चलो यार let's give it a try and everything. So why not? And do you sometimes just like say किसी ने कुछ भी नहीं बोला, but you're walking by somewhere and you really like अच्छा मेरा एक और जो मंत्र होता है बस walking by, मैं देख रहा हूँ यहाँ लाइन क्यों है, ठीक है, हाँ यहाँ इतना लोग क्यों है, ठीक है, फिर मैं थोड़ा सा जाके बस अच्छा एक और चीज़ अगर मैं ऑब्जर्व करता हूँ, ज़बान क्या बोल रहे हैं यहाँ, अगर यहाँ ज़्यादा बहुत अंग्रेज़ी चली, मैंने कहा अच्छा ये शायद टूरिस्टी जगह है, ठीक है, मगर थोड़ा अगर आप देख रहे हैं यहाँ कोई लोकल टाइप सी वाइब है, लोकली खड़े हुए हैं एवरीथिंग. जैसे मैक्सिको सिटी में तुमने देखा होगा ऐसे बहुत सारे, वहाँ ठेले पे कोई ऐसी बस लाइन है, ठीक है, ठेले पे, और कोई ठेले पे कोई लाइन नहीं होगी, ठीक है. अब ठेले पे जो लाइन है वहाँ क्या बन रहा है, ठीक है, वहाँ क्या टाको है एंड एवरीथिंग. और मैंने एक थी जगह वहाँ एक फ़िश टाकोस ऐसे खाए थे, और वो फ़िश टाकोस बहुत इंटरेस्टिंग था, वो एक फ्लावर के अंदर बने हुए थे. सो देयर वर सम एक वो था, और उसकी अगेन वाज लैंग्वेज, आई डोंट नो व्हाट इट वाज, बट माय गॉड दे वर ब्रिलियंट. ऐसी एक चूरोज वाला था, ऐसी लाइन लगी हुई थी, बस मैंने कहा अच्छा ही होंगे, ठीक. So that's another thing which I do is with food. You just identify कि यहाँ पे क्या कहाँ पे. Yeah. And Google Maps से जो ratings आती हैं generally, you don't think that's yeah, I feel like it's a lot. I mean 50-50 हो सकता है. कभी कभार तुम देखो अगर it's like a 4.6 और 30,000 रिव्यू हैं तो it's probably legit. Yeah, that's true. You know what? Because शुरू में I found कि ज़्यादातर जो लोग रेटिंग्स दे रहे थे वो अपने पैलेट के साथ, पैलेट में भी फर्क पड़ता है ना. हम अगर देसी पैलेट है हमारा, हमें नहीं पसंद आएगा जो फ्रेंच बंदे को शायद पसंद आएगा. Absolutely. But now what I've realized is that like couple of places I've been to randomly because I was crossing by, and मैं तो अपनी पूरी ट्रिप गूगल मैप्स पे प्लान मैं भी सेम हाँ कि वो यहाँ मैं पिन भी ड्रॉप कर देता हूँ, पिन ड्रॉप करके सेव यहाँ जाना है, यहाँ खाना खाना है. अगर मैं एक जगह जा रहा हूँ, I suddenly see कि अच्छा वो शिट यहाँ
यहाँ पे एक और वो है जो something तुमने भी मुझे पूरा गूगल मैप ही भेजा था, ठीक है? Exactly. So if you flag a place and you're going past it, then you go and go into. And sometimes I've just been like, अच्छा यार अब एक रामेन की मुझे जगह नजर आई थी in Palo Alto, San Francisco में. If you're going, I'll let you know. Excellent ramen, right? Like, and it was a complete surprise. Like I had no idea, but turned out it was very highly rated. And I was just in that. You were in that area, exactly. अब एक जो चीज मैं जरूर बोलूंगा इज जहाँ जो टूरिस्टी इलाका है ना, वहाँ खाना मत खाना. वहाँ खाना it'll be overpriced and वो बस वो catered होगी टूरिस्ट के लिए. वहाँ अच्छी रेटिंग भी जो है ना मैं देखता हूँ किसने लिखी है, ठीक है, ज्यादातर. सो वहाँ जैसे लाइक अगर इफ यू गोइंग टू इस्तांबुल, डोंट ईट इन सुल्तान अहमद, लाइक डोंट ईट देयर, लाइक जस्ट डोंट, लाइक स्टेप आउट ऑफ इट अ बिट. अगर आप लंदन में जा रहे हो तो पिकाडेली सर्कस से तो दूर ही रहना. लाइक वहाँ सब कुछ ट्रैप है. और हर चीज ओवर प्राइस होगी. सेम लाइक अगर तुम लाइक न्यूयॉर्क में तुम टाइम स्क्वायर पे बैठ के तुम हर चीज खा रहे हो, इट्स नॉट गोइंग टू बी ग्रेट. सो दैट इज वन एडवाइस जो मेरी होगी लोगों को कि थोड़ा निकलो बाहर वहाँ से. एंड दैट्स हाउ यू विल एक्चुअली फाइंड समथिंग इंटरेस्टिंग. लाइक अभी मैं इस्तांबुल में था, तो इस्तांबुल में आई हैड दिस अमेजिंग डिनर. और ऐसे हम गली के अंदर ऐसे वॉक करते, वाज अ जॉर्जियन रेस्टोरेंट, अमेजिंग डिनर. I've heard great things about Georgian food. Amazing food. I haven't been. Amazing food. Amazing. I've been to Georgia. So what are some of your best places that you visit that you would recommend to people, which are also within the budget friendly? Okay, I'll tell you my number one country, and I always say this, Hamesha, and I will say this as a Pakistani traveler, it is doable for everyone, is Nepal. ठीक है? Okay. Nepal visa on arrival for Pakistanis, no questions asked. As in have a return ticket, hotel booking. ये 15 दिन का मिलता है. दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज, एक तो पैलेट. It's literally smack like a fusion of Chinese and Indian. So we understand that palate. ठीक है, वो हमें खाना बहुत मज़ेदार है. दूसरी बात है, हम लोग we are SAARC nations over there. तो अगर आप अपना SAARC like passport आप दिखाओ कि मैं SAARC nation का हूँ, तो तुम्हें हर साइट पे डिस्काउंट है. It's like okay, nice. so it's everything is discounted. So जो चीज़ गोरे के लिए $20-25 होगी, आपको $100-200 रुपये देने होंगे एंट्रेंस के, ठीक है. okay. दूसरी बात है, you get a mix of बहुत like काठमांडू जो वैली है उसी के अंदर इतना कुछ है देखने को. There is a lot of history, a lot of culture, इतने temples हैं देखने को. सो लाइक वहाँ तो naturally beautiful. दूसरी बात है, people are very friendly. तीसरी बात है is because of their close proximity to India, और उनका इंडिया के साथ freedom of movement है. ज़बान सब बोलते हैं. सो लाइक अगर लाइक everyone speaks उर्दू, हिंदी and everything, so आप you can talk to them on a very deeper, you can have deep conversations on a very deeper level. नेपाल के अंदर बेसिकली एक कैफ़े के अंदर मैं ऐसी एक दिन थक गया था. I just stepped into that cafe और वहाँ बंदा ऐसी लाइव म्यूजिक गा रहा था, वो लाइक इंडियन गाने गा रहा था. Does anyone have any request? तो मैंने ऐसी जाके पूछा, मैंने कहा do you know any पाकिस्तानी numbers? ठीक है, उसने कहा हाँ आतिफ असलम. तो in perfect enunciation उसने आदत पूरा गाया था and everything. Wow. So I don't know why Pakistanis don't go there that much. I feel like they should go to Nepal. और नेपाल के अंदर एक और जो चीज़ माउंट है, if you're into hiking, the great outdoors. Yeah. Like but we can do that in Gilgit-Baltistan. But we can like, and you know that is also another thing which I always say to people. मैंने कहा अगर तुमने पहाड़ पाकिस्तान में देख लिया तो तुम ज़्यादा इम्प्रेस नहीं होगे कहीं भी. I mean एवरेस्ट वाली मैंने फ्लाइट ली थी, मैं कहा हाँ अच्छा है, सही अच्छा है, मतलब वो, but it's not the same. Like you don't feel like the first time you see like say K2 or like say Nanga Parbat etc. on that flight. Yeah. उसके बाद सही है, एवरेस्ट will also look great, but not the same the thing is because if you've gone to Hunza ना, like जहाँ like literally हर जगह है, so पहाड़ होने, but go to Nepal like as a Pakistani, the Kathmandu Valley is great and very budget friendly. हमारा exchange rate I think उनका ₹1 हमारा 1.8 or something, so very budget friendly. Okay. So you can go there. I say go to Sri Lanka also. I don't know why Pakistanis again don't go there. Nearby बिल्कुल है, currency बिल्कुल equal है, खर्चा उतना ही होगा तुम्हारा जो अगर तुम रेस्टोरेंट में हमारे जा रहे हो वही होगा. देखने को बहुत कुछ है. अच्छा, श्रीलंका के अंदर जो सीन ये कि if you want a change of scenery, you can just have a nice weekend in Colombo. Great restaurants, great shopping. You want थोड़ा सा बाहर निकलना है तो कल्चर भी बहुत है, बहुत सारी हिस्टोरिकल साइट्स है, बीच है सारा. श्रीलंका के साथ अगर करना है एक और मुल्क तो मालदीव्स कंबाइन कर लो, ठीक है. मालदीव जरूरी नहीं है रिजॉर्ट में ठहरो, कैपिटल में ठहर जाओ. कैपिटल में I've done a budget Maldives trip, ठीक है. Like I found this guest house over there was $40-50 per night, which is budget for there. It's excellent था, ठीक है. माले में ठहरा था and I just walked around माले walk around किया. वहाँ लोकल से पूछा कि तुम किस बीच पे जाते हो, उसने कहा बोट पकड़ो यहाँ से
50 सेंट की कोई बोट थी, मैं बोट पकड़ी, बराबर आइलैंड पे चले गए, वहाँ लोकल बस बीच पे बैठे हैं, तो आई गॉट लाइक अ वेरी लोकल बजट लाइफ मालदीव्स, यू कैन डू दैट. सो आई वुड से लाइक अ लॉट ऑफ, हम लोग जो होते हैं ना, वी गो टू लाइक, हम दुबई जाएंगे, विल गो टू इस्तांबुल, गो टू बैंकॉक, बट अपने रीजन में बहुत कुछ है देखने को. So, and these are all very easy. Maldives is on arrival, Nepal is on arrival, Sri Lanka is an e-visa. Okay, उसके अलावा like if you were to say extend a bit out and spend a bit more money, so like what kind of budget do you think, कितने पैसे होने चाहिए for you to be traveling? देखो, I would say to be comfortable international trip अगर करना है, comfortably करना, 2 में आप एक 2-2.5 लाख या $1,000? 2-2.5 लाख रुपए. दैट इज वेयर आई वुड से कि आप एक रीजनेबल ट्रिप, 2.5, यू कैन बी 2-3 दिन का, आप जैसे चलो आप नेपाल का कर सकते हो, ठीक है, आप 2-3 दिन अभी है. 3 के अंदर अगर आप जाओगे, then okay, then you're comfortable in everything, because 3 lakh would be come down to around $1,000, under $1,000. हम लोग जो मारे जाते हैं is unfortunately is because of airfares. हाँ, सबसे ज़्यादा हमारा एयर फेयर है. ऑन द ग्राउंड इतना खर्चा नहीं होगा, हमारा सबसे ज़्यादा जो तुम्हारा खर्चा होगा वो एयर फेयर ही होगा, जो $450-500 तक तो वहीं लगने हैं तुम्हारे. इफ़ यू आर लकी यू कैन गेट अ $300 फ्लाइट. Okay. Yeah, but उसके लिए आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा and everything. So typically, like flight is 50% of your entire budget. If you're traveling from Pakistan, yes. Yeah. So Nepal जो है on the ground is not expensive. Flight आपको पड़ेगी like 130, 140, 1.5 पड़ेगी आपको flight. But on the ground it's chill. आपको बहुत अच्छा होटल मिल जाएगा. Like 1,000-2,000 रुपए में. Okay. With breakfast. With breakfast, etc. And clean hotel, etc. Clean होगा, backpacker neighborhood के अंदर होगा, जहाँ hotels, और Nepal was an exception where I would say कि do stay in the backpacker neighborhood. It's called Thamel. Okay. वहाँ restaurants हैं, cafes हैं, throughout रात में like activities, so you can stay there, and that's where I stayed. I loved Nepal. I would love to go back. Really? Man, ये तो हमारा कोई नेपाल टूरिज्म अथॉरिटी should sponsor this podcast. I know, man. मैंने इतना मैं हर बंदे को, अच्छा लोग नहीं जाते पाकिस्तान से, नहीं जाते बहुत कम लोग जाते. I mean, I know a lot of people who've been, yeah, but not a lot of people come and be like, yeah, Nepal is on my list. जितने should go don't go. A lot more should be going. Pakistan is a lot. I think सबसे popular होगा Baku, would be like exotic. Yeah. Have you been to Baku? Yeah, I've been. How did you like it? I think Baku is like if Dubai and Istanbul had a child, it would be Baku. Like, but not a great child, or like an average child. An average child. An average child. Some people really like Baku, by the way. Like they've been speaking. But what kind of people say, when we define personas, like people look for different things when traveling, yeah, right? What kind of people would enjoy Baku? देखो no, Baku का scene ये my thing with it is there is a lot of oil money over there, ठीक है. So वहाँ जो history भी है ना, उसके ऊपर बहुत ऐसा heavily चूना लगा के restore किया हुआ है that doesn't look old. So it's very flashy. Novo rich जो होता है ना, new money, no दौलतिया. That's what the country feels like. Like it's खूबसूरत है, बहुत well made and everything, but आपको लगता है कुछ इनका अपना culture वाली feeling नहीं आती. But one thing which is great in Baku and Azerbaijan is they really like Pakistanis. They really like Pakistanis. तुम बता दो, तुम पाकिस्तानी हो, आपको डिस्काउंट मिलेंगे, आपसे बहुत अच्छी तरह बात करेंगे. इट वॉज अ बिट डिस्टोपियन बिकॉज वहाँ आपको 3-4 झंडे एक साथ नजर आएंगे, अजरबैजान, टर्की, पाकिस्तान, इजराइल, एंड यू लाइक This doesn't make sense. But उनकी फौज के चक्कर में तो ये हमने उनको बहुत सपोर्ट किया था आर्मीनियन. हम अभी भी आर्मीनिया को नहीं रिकॉग्नाइज करते. उन्होंने भी कर लिया लेकिन हम नहीं करते. हम सारा वो एक जेनोसाइडल क्लब है तो ये हम लोग नहीं रिकॉग्नाइज करते उनको. Yeah, but Azerbaijan recognizes it. And if you ever want to go to Armenia, you can't. No, we can't. It's such a pain, man. I know. It's the only country I have left in the Caucasus, तो मैं नहीं जा सका. अजरबैजान में मैं कहूँगा कि बाकू से थोड़ा बाहर निकलो कल्चर देखने के लिए. तो लाइक वहाँ बहुत खूबसूरत एक मस्जिद है, बीबी हैबत मॉस्क है, which only like it's popular with women who go there. तो मैंने कभी ऐसा मंजर कहीं दुनिया में नहीं देखा. वहाँ सिर्फ औरतें जाती हैं like कोई मन्नत मांगने and everything. So that it's a very unique, बहुत खूबसूरत मस्जिद है. So Azerbaijan people, you're asking like who would enjoy it? Azerbaijan, someone would enjoy it who wants to go to Istanbul and Dubai. But they don't have the Dubai and Istanbul वाला budget. Okay, yeah. So you can do, तुम्हें वही वाला feel मिल जाएगी, अच्छी shopping, अच्छा खाना, अच्छे beach के नज़ारे, yeah, but at like 50% the price. Okay, that's a pretty it's a good deal. And it's a direct flight. So like आपकी Azerbaijan Air की direct flight जाती है. कराची से या लाहौर से?
कराची लाहौर दोनों से जाती है, आई एम वेरी श्योर। आई थिंक इस्लामाबाद से भी शायद जाती है, PIA भी शायद जाती है। आई टुक अ PIA फ्लाइट, एक ज़माने में जाती थी, आई डोंट नो अब जाती है कि नहीं जाती है। 3 घंटे में यू विल बी देयर, वीज़ा ईजी है, इट्स एन ई वीज़ा, इट्स वेरी बजट फ्रेंडली, वेरी वेरी बजट फ्रेंडली, या people are nice, food is good. Have you been to Iran? Not yet. Yeah. I need 2 weeks for it. So like I need to take out 2 weeks of my life. I was actually going to go to Iran and Syria abhi in November, and then you know what happened. हाँ अभी तो वाला सीन हो गया, but I went to Lebanon last year. Like you went to Lebanon last year? I did it गाजा की जो एक वो सीज फायर हुई थी ना, 4 दिन की ही एक सीज फायर हुई थी बीच में, उसमें पहुंच गए। मेरा वीज़ा लगा हुआ था। सो बेसिकली मैं एक फोटो जर्नलिज्म वर्कशॉप थी बेरूत में, एंड दैट वाज स्केड्यूल्ड फॉर लास्ट ईयर, आई थिंक सितंबर की थी। ग्रीन पासपोर्ट, तो वीज़ा तो आया बट वर्कशॉप ख़त्म हो गई थी। मगर मेरा वीज़ा जो था ना वो अराउंड 180 डेज़ की वैलिडिटी थी उसकी। एंड दिस फ्रेंड ऑफ माइन, आई रिमेंबर, मैं एक चाय पे मिला तो एंड एवरीथिंग, एंड वो मुझसे कहते बिलाल चले जाओ, मैं बता रहा हूँ ये इलाका यहाँ आग लगी हुई है, मुश्किल हो जाएगा, तुम शायद कभी भी ना जाओ। अभी लगा हुआ है। आई नहीं यार ये वाला थिंग है। एंड आई थिंक वो सीज फायर हुई थी 4 दिन, आई थिंक बस मेरे दिमाग में आ गया, मैं कहा इट्स नाउ और नेवर, लिटरली जस्ट गो। I went, Beirut was beautiful, but also very sad, very tense. It was tense times, yeah. And पूरा हॉस्टल में बहुत अच्छा एक हॉस्टल था, like बड़ा कूल सा हॉस्टल था, बड़ा कूल इलाका था, but it was eerie because the hostel was empty. I was the only person in that hostel. Like वो मेरे लिए किचन खुलता था, मेरे लिए नाश्ता बनता था वहाँ, ठीक है, like हर चीज़ मेरे लिए होती थी उधर। तो like I would say I saw very first hand जो पोर्ट में जो ब्लास्ट हुआ था वो नजर आता था मेरे हॉस्टल से, लाइक सारा वो, तो इट वाज वेरी रियल, the conflict was very country real. I feel sad about, like unke Beautiful country, and it's like I have never met anyone who's been to Beirut and not enjoyed it, like I loved Beirut. Log, I would say, again मेरी timing off थी, so like obviously they're not there to be like, oh yeah, happy to see a tourist and everything. No, of course. Everyone's very closed off and very wo wala thing, but I bought a very nice painting from there. I hope I get a chance to go there again. So in terms of solo travel versus group travel, you are usually doing solo travel, right? Yeah, the good question. Yeah. So how do you think the dynamics change? And a lot of people are very scared to do solo travel. Like लोगों से नहीं होता कि मैं अकेले I'm very scared to do group travel. Why? यार एक बात बताऊं, जैसे मुबारिस, बिकॉज सोलो ट्रैवल में देन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ, आप अपने रूटीन पे अपने कंफर्ट के अंदर आप सब कर सकते हो, यू आर वेरी एट ईज ऑन हाउ टू डू इट। ग्रुप ट्रैवल में यू बिकम वेरी डिपेंडेंट, और जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा नखरे भी होंगे, and you move very slowly. You move very slowly, ठीक है, very slowly, और like कई दफ़ा you will do nothing even. Like I've gone on such trips where I was like, हमने कुछ देखा नहीं अभी तक, ठीक है, और पूरा दिनों निकल गए, यू आर जस्ट बेसिकली। एक ट्रिप पे मैं गया था, वाज अ वेरी गुड ट्रिप एंड एवरीथिंग, बट लाइक लिटरली हम लोग, आई फील लाइक हम बस पार्क में बैठ के कोक स्टूडियो के गाने सुन रहे होते थे, कभी बैठ के हम फुल पाकिस्तानियों के पार्क में खाने खा रहे हैं, रैंडम बस वो वाइब्स चल रही थी, वाज अ वेरी गुड ट्रिप, बट आई वाज लाइक वी शुड हैव सीन समथिंग, वी हैवंट सीन एनीथिंग येट, ठीक है, तो वाज वेरी चिल एंड वाइब्स वाला ट्रिप है। सो एंड अनदर थिंग व्हिच आई मस्ट गेट एट इज कि हमारे यहाँ जो है ना पाकिस्तान के अंदर, जो यू हैव टू ऑल्सो फाइंड वन थिंग व्हिच आई से इज द हलाल हराम कोफिशिएंट एंड रेशियो, वेयर यू आर मीटिंग परफेक्टली विद वन अनदर। जैसे हमारे कई लोग हैं जिनके साथ मैंने ट्रैवल किया एंड एवरीथिंग, हु आर लाइक हम तो गोरों से बात ही नहीं करेंगे, हमें तो लोकल से बात ही नहीं, हम नहीं ये है एंड एवरीथिंग, वो आराम। और एक होंगे जो बॉयज होंगे जो कहेंगे ब्रो मुझे तो जो है ना बीच में LSD भी करनी है, इसके ऊपर मैं ये भी करूंगा, मुझे मशरूम भी करनी है, लाइक ब्रो मैन, लाइक तो पागल वाला तो नहीं हो गया, ठीक है। सो यू दैट इज द थिंग आल्सो हमारे मुल्क में, वेयर यू हैव टू लाइक फाइंड द बैलेंस लाइक बिटवीन देम। So इसीलिए मैं ग्रुप ट्रैवल से I get a lot of anxiety. Iraq was like one trip where I went this year, like it was a pilgrimage, but over there I saw that you are actually put in a room you have to share with a random like 3 or 4 people. Sorry. And for 14 days, this is the trip. Okay, wow. 14 days is a lot. Yeah. ठीक है. I was lucky. एक मेरे जो roommate थे मुर्तज़ा भाई, now it actually like legit like friends. It's like we matched completely 100% on that ratio. Like vibes match हो गई, like Bluetooth connect हो गया. So I think we just got by very easily. But कभी कभार you're not matching completely. Like जैसे एक boy था हमारे roommate होता था and everything. वो मुझे हर चीज़ पे जज करता था, जैसे कि
कभी कभार like मैंने religious वाला aspect कर लिया, but I was like I want to go see the city also. I want to go see like यहाँ खाना पीना मुझे ट्राई करना है. I want to see the historical sites. वो जैसे Yeah. I'd be judged for that कि like आप यहाँ किस मकसद के लिए आए हैं, ये वाली बात है. So like it's very like ये वाला thing. I'm much comfortable with solo, but with time I've also realized group isn't too bad. It's not too bad. हाँ, but it's a group का जो biggest advantage is that Company. things become cheaper as well. By the way. Yes, your trip becomes cheaper. cheaper हो जाता है. दूसरी बात है company isn't bad sometimes. Like company Yeah, isn't bad sometimes. Sometimes if you have another voice साथ में, it actually becomes a very fun trip. So like I said, like last weekend I went to Istanbul. Istanbul में coincidentally there was a friend who was in town also. And somehow like it just coordinated, and the friend was there in town exactly for the same amount of time I was there. Oh, perfect. So yeah. Friend had nothing to do, I had nothing to do. Like my job was done the minute I was on the plane. So mera to kaam ho gaya tha. I had to review the flight and I was done. And his thing was like, he's like, I'm just in transit. So literally with nothing to do, we actually just ended up chilling. He's like, क्या करना है, चलो ये walk करते हैं, चलो ये खा लेते हैं, ये restaurant खा लेते हैं. And it ended up being one of the best weekends after a long time. So that's when I used to be very rigid कि नहीं मैं solo ही करूँगा, but now I've become more like it's fine. No, it really depends. I completely. But it depends on the person. Of course, yeah. Like some people can't. हर बंदे के साथ उठ के ट्रिप पे मत चले जाना. और हर कोई अकेला भी नहीं जा सकता. मैंने ये भी पता है. Like some people are just not meant for solo. No, some people are not meant for solo and travel. they're like a whole different. Yeah. Like with my siblings, like I've traveled with both of them, and मुझे दोनों के likes and dislikes पता है and everything. So I know मैं किस sibling के साथ कौन सा trip कर सकता हूँ. Like अगर मुझे कोई बिल्कुल ही like heavy कोई physical वाला type होगा, like मुझे कोई mountain climb करना होगा, ये वाला मैं भाई के साथ जाऊँगा, मेरी बहन को नहीं करना होगा. मगर मुझे अगर full vibes वाला चाहिए, like कुछ अच्छा restaurant try करना है, and my sister's also very good at talking to strangers. ठीक है? Okay, excellent. She has a talent. She has a talent how she will make friends in random places. So like if you want like the vibes, the social vibes, I'll go with my sister. My brother is a bit of an introvert. वो ऐसे random लोगों से बात नहीं करेगा. Like उसको remind करना पड़ता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, मुझे भी call कर लिया करो, ठीक है. So but if I want to do like like I want to do like Everest base camp or something, I'll go with my brother. Like he'll be great company for that. Like वो साथ देगा आपका 100%. So yeah, you have to see who's who, and not the same friends would be the right partner. No, for that trip. You have to also know कि मैं इस trip पे क्यों जा रहा हूँ. सही. So yeah, that kind of thing. No, that's a good segue into like another thing that I want to get a sense of is कि अगर आप एक शहर की, if you want to get to the soul of a city, what is it for you? Like at what point do you feel like यार मुझे इस जगह की vibe समझ आ गई, कि क्या सीन होता है? यार मेरा जो होता है ना is दो चीज़ें होती हैं, ठीक है. एक usually होता है, देखो हर शहर का जो है ना एक like I divide cities into two, like एक coffee city होती है या एक चाय city होती है. Like that is how it is. Okay. So you have to find क्या है and where do these people get their kick from, their caffeine kick from. और वहाँ जाके जो है ना after you're done doing your sightseeing जाके बस बैठ जाओ and just observe life over there. And that's जहाँ आपको पता चल जाता है क्या हो रहा है. So in Karachi, just to put this in context, where all would you go and sit to get the vibe of Karachi? Quetta Alamgir जाके बैठो, that's in Hyderabad. Go Cafe Clifton because you'll get like, you literally get the view of Clifton over there and you'll see life over here. And Tisra is like if you want like a very cozy neighborhood wala roadside cafe is a very one, because over there you'll meet आपको बहुत सारे intellectuals, artists. You might even see some well-known people, but it's like a very small neighborhood cozy cafe, and you'll just वहाँ जाके just sit and just observe life. And कभी कभार just order a chai, order a coffee and everything. If it's like a country where that they speak English or something, just listen to a few of the eavesdrop. आपको बड़ा कुछ समझ आ जाता है शहर के बारे में. It's very interesting that way. Like in Europe के अंदर आप बहुत जगह जाओ तो वहाँ तो like वो espresso या ये वाला बड़ा culture है. जाके कैफे में बस बैठ जाओ. Just go like, and you'll observe life over there. I've seen that in a lot of places. Because and like in Afghanistan they have no caffeine wala culture, they have green tea culture. So green tea, तो वहाँ तो actually go into a restaurant and just sit over there and you will see people come in out. आपको
हर किस्म का बंदा आपको नजर आएगा वहाँ. सो दैट्स वन वे टू ऑब्जर्व इट. दूसरा इज एक पब्लिक स्पेस देखो इस शहर में पब्लिक स्पेस पे लोग जमा कहाँ होते हैं. एंड यूजुअली डोंट गो देयर इन द मॉर्निंग, गो देयर इन द इवनिंग, बिकॉज सी दैट इज वेयर यू विल सी पीपल कम आफ्टर वर्क. काम के बाद लोग चिल करने आएंगे. सो वहाँ आपको बड़ी लाइफ नजर आएगी. जैसे कराची में सी व्यू इज वेरी मच आई नो अ लॉट ऑफ पीपल है, इट्स गंदा है जैसा भी है, बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज वेरी कराची. आपको वहाँ और शाम में जाओ, शाम में जाओ सनसेट वाले टाइम पे आपको सारा वो वाइब. अगर नॉट सी व्यू देन बाग इब्न कासिम है, दैट्स अनदर वन वेयर यू विल सी अ लॉट ऑफ फ्रेयर हॉल आई थिंक इज एन एक्सीलेंट प्लेस ऑन संडे मॉर्निंग. एक्सीलेंट पब्लिक लाइफ. आपको हर किस्म का बंदा नजर आएगा वहाँ. आपको ज्यादा टिकटॉकर नजर आएंगे, टिकटॉकर बहुत नजर आएंगे. बट दैट्स गुड, आई लव इट, आई लव द फैक्ट दैट टिकटॉकर नजर आएंगे, डेट वाले बहुत नजर आएंगे. दैट इज द आपको कोई कभी कभार, बट इफ यू लकी, मुझे एक दो दफा मुझे मिले लोग जो बस किताब पढ़ रहे हैं बैठ के, बस पार्क में लेटा हुआ कोई पार्क पे, या कोई कुछ ऐसा कुछ स्केच कर रहा होगा. सो या एंड दैट इज वेयर यू सी डेली लाइफ. So yeah, that's what I would say. Another third thing which a lot of people don't do is देखो इस शहर में कोई आर्ट्स का सीन क्या है. हर शहर में होता है. Look for the artists, because कई दफ़ा होता है people tend to overlook this. तो I would say spend some time, या तो go into a gallery, ठीक है. If not a gallery, कोई एक performing arts का सीन देखो क्या है यहाँ. Like कराची में one thing which people tend to overlook and everything is try go see something at Napa, because there's we have a great performing arts culture and everything. Go spend night at the theater. वहाँ आपको बड़ा एक सोल नजर आएगी सिटी की. आपको समझ आएगा ये इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है शहर का, क्या नहीं है. लाहौर में हो तो go watch something at Alhambra, I would say that. Like New York में हो, go at 50,000 places. 50,000, but do go watch a Broadway. London में go do watch a West End, because that's where you really आपको वो level पे आ जाते हो and everything. So yeah, I do see that. No, that's excellent. Achha, last question. I know you've been very generous with your time as well. What are some of the frequently asked questions and comments that you get from all your followers, community people about travel? पैसे कहाँ से आते हैं ट्रैवल के? वो मैंने पूछ लिया बढ़िया आपसे. No, but mistakes कई दफ़ा लोग पूछते हैं. Like Bilal, I'm about to start off and everything. तो मैं क्या नहीं करूँ? And how do I get started? तो मेरे जो answers होंगे, there's a lot of things. But one thing ये होगा कि एक number one most important thing is pack accordingly. क्योंकि जब आप शहर में पहुंचोगे वो उठाना सामान आप ही को है, ठीक है. एंड इफ़ यू हैव टू टेक अ ट्रॉली बैग इन यूरोप जैसे शहर में जहाँ सिर्फ वो कॉबल्ड स्ट्रीट्स हैं, और प्रॉब्ली अप अ स्टेयरकेस, आप अपने आप को कोसोगे, बिकॉज you have to put that on public transport, because taxis will cost you $150 कि आपको टैक्सी पड़ेगी. So you have to take public transport. You will be like, what, मैंने क्यों इतना का सामान रख लिया. So that is one thing I would say. दूसरा एक मिस्टेक मैं कहूँगा कि कुछ मुल्कों में पैसे इतने बदलवाओ कि जितने तुम्हें खर्च करने हैं, जितना तुम्हारा डेली का हो. I have the 50-100 रूल, ठीक है. तो मुल्क लिहाज से देख लो कि इसकी परचेसिंग पावर वाला क्या है, ठीक है. या तो अगर जैसे एशिया टाइप इलाका है, हमारा टाइप इलाका है, $50 विल गेट यू वेरी फार, ठीक है. पर डे $50 लाइक टू चेंज, ठीक है. अब $50 अगर तुम पाकिस्तानी रुपए में लगाओ इज लाइक ऑलमोस्ट 14,000-15,000 रुपए. 14,000-15,000 रुपए विल टेक यू फार, ठीक है. वो तुम रखोगे अपने डेली छोटे मोटे खर्चे, तुम ग्रोसरी वोसरी करने जा रहे हो, कभी तुम छोटे ढाबे वाबे में बैठ गए हो एंड एवरीथिंग, एंड डिवाइड दैट विद योर थोड़ा क्रेडिट कार्ड के खर्चे से. क्रेडिट कार्ड में बड़े खर्चे करो, अच्छे रेस्टोरेंट में जा रहे हो, होटल पे जा रहे हो, सो कीप दैट. इंटरनेशनल प्लग रखो, ठीक है. कमिंग बैक टू द पैसा वाला, मेरा जो एक मिस्टेक था, कई दफ़ा होता था मैं $200-300 में करवा देता था. याद रखो ये तुम्हें वापस भी चेंज कराने हैं. You're losing money in that. एंड दूसरी बात है, कई दफ़ा सम कंट्रीज़ का जो मनी चेंजर हो, you're waiting till the एयरपोर्ट में मनी चेंजर है ही नहीं, या मनी चेंजर बंद करके चले गए उस टाइम पे, आपकी फ्लाइट इन द मिडल ऑफ द नाइट एंड you're left with a ward of useless currency. So do that. Keep an international plug always. Wear comfortable shoes always, ठीक है. तीसरी बात है, if it's a long flight, कोई ऐसे तैयार होके मत जाना फ्लाइट पे, ठीक है. Because you have to wear something comfortable जिसमें आप सो हो जाओ and everything. Yeah, and don't be scared to make conversations with random people. Just be wary. हर बंदे को अपनी लाइफ हिस्ट्री ट्रॉमा बताने की जरूरत नहीं है, but you might have great experiences also in that process. Okay. No, yeah. I think that's very interesting uske saath. But any other tips or something that you could come up with, or something that people have asked about a lot?
अदर ट्रिप्स, लोग जैसे मुझसे बार बार पूछते हैं मैं किस कंट्री से स्टार्ट ऑफ करूं, तो मैंने तो बार बार जैसे यही कहता हूं कि लाइक इसे कि मैंने कभी ट्रैवल नहीं किया बिलाल। हाँ. या लोगों का एक ये होता है कि बिलाल हमारे लाइक जो बड़ा वीज़ा होता है लाइक एज एन अमेरिकन शेंजन ये वाले, हम किस तरह एंड माई थिंग इज़ कि यार पहले लुक एट द ईजी कंट्रीज जहाँ जहाँ ट्रैवल कर सकते हो और अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बढ़ाओ। तो वही जैसे मैंने कहा, जैसे देयर इज़ नेपाल है, श्रीलंका है, मालदीव्स है, यूएई तो हैज़ बिकम डिफिकल्ट नाउ, ठीक है, तो हैज़ बिकम स्केची। तो बट एटलीस्ट ये कंट्रीज़ करो, और इसके अंदर अज़रबैजान भी है, थाईलैंड भी रिलेटिवली ईजी है, मलेशिया, एटलीस्ट आप एक कंट्री अपना 8 to 10 का कंट्री काउंट रखोगे, ट्रैवल हिस्ट्री होगी, then you can apply for those. So yeah, that's what my advice would be for them. And मेरी एक जो advice ये होगी कि दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया बहुत बड़ी है, so start looking beyond. Yeah, and yeah, exactly, especially Africa. And yes, some countries in Africa. Africa में जैसे कई countries हैं जो visa on arrival है, and I have them on my list. जैसे Mauritania है, उसकी अगर आपने देखी हो, उसकी iron ore train है. Okay. I really want to go to Mauritania, and Mauritania I was supposed to go with Morocco, but everything got messed up over there, so I could not. So Mauritania is on arrival. Cape Verde एक और island है, is on arrival. Yeah. Madagascar is on arrival. Yeah. ठीक है. So yeah. Like you do go to places, look beyond the Bangkok, Istanbul, Dubai, which are great in itself, but uske beyond bhi duniya hai. No, but thank you so much for this, No, man. Thank you so much for like really breaking this down. I truly believe that travel is the best investment one can make in themselves. Absolutely. Yeah. Absolutely. And breaking that down and saving that for yourself, and instead of spending money on नई गाड़ी ले ली या कुछ वैसे कपड़े ले लिए, I think that's the best the thing experiences you will have, and the way your horizons will broaden, that only travel will teach you, and you will learn a lot about yourself also. Yeah, exactly. I think that's probably the biggest outcome of travel. Like I knew, especially solo travel. Like I knew I don't like museums. So perfect. Thanks so much, Bilal. Thank you so much for having me.